बात बोलने का मौका। दूसरा क्वेश्चन है, करो करो। अच्छा हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, यस, चलो ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ही डालना है इस शीट में? क्वेश्चन नंबर तो डले हुए है ना। हाँ नहीं, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7 दिख रहा है। हाँ वो मैंने डाल लिए हैं, वो कर लेंगे, वैसे ही कर लेंगे। अच्छा हम्म। ठीक है। करूँ, मैं शुरू करूँ? हाँ जी बिल्कुल। शैलेंद्र, लाइव। आपने लाइव करने दिया हो तो मुझे बता दो। हो गया भैया। लाइव स्टार्ट है बेटा? यस। ऑल राइट। हेलो फ्रेंड्स, सो I'm Alok Bansal, and Shobhit Bhaiya is also with us, and we are just recording this session for you for with respect to the solutions of JEE Advanced 2022. So without wasting any time, let us start with the questions, and probably if you're looking for conclusion, you can jump to the end of the video, or the end of the session. You can just see, for those who might not be able to see this session live, about the conclusion of the exam, which we'll probably try to have. Right. So this is section one. Section one has had 8 questions, and it had numerical value questions, as you already know, and you had to truncate it or round off till 2 decimal places, and it has no negative marking. So I mean, you should have attempted as many questions as possible. So the first question is of inverse. तो पहला इनवर्स का क्वेश्चन देखते ही थोड़ा लोगों को लगता है वो इनवर्स का क्वेश्चन आ गया, बट we can try and always attempt it, right? So I'll just go to the OneNote file. So I've already taken a snap of this question. So the question says that considering only principal values of the inverse trigonometric functions, the value of this will be. So you have to ensure that you're only talking about the principal values of these inverse functions, right? So this is obviously a value, so cos inverse will be an angle. So the angle is lying within the principal values is what this question is saying. तो अगर ये principal values के बीच में lie कर रही है ये वाली value, तो overall और ये वाली value और ये वाली value, तो overall value क्या होगी, right? So we can try and solve this question. Energy. So we have this expression. We can talk about E. So E is 3 by 2 cos inverse root of 2 by 2 plus pi square plus 1 by 4 sine inverse of 2 root 2 pi by 2 plus pi square plus tan inverse of root 2 by pi. So when I solve such questions, I just solve it like a layman. जी हमने तो थ्योरी वेरी तो पता नहीं क्या है, हम तो नॉर्मल तरीके से करते हैं, है ना? तो कोई ना कोई ये दिस मस्ट बी साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स एंड देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप गोइंग ऑन। एंड थोड़ा देखोगे तो जैसे cos इनवर्स लिख लो, तो आई you can probably make a triangle. I just made a triangle when I solved. So ये I assume, let's say this is root 2, so this is the numerator. I assume this is the base, and then this is the hypotenuse, so 2 plus pi square. So if you just try and calculate this height, it will be square of this and minus this करोगे तो ये वाली value, I think it will come out to be pi, right? So we can take this angle as alpha because both these values are positive, and principal value range में करोगे तो positive की बात हो रही है, तो ये 0 to pi by 2 के बीच में कहीं ना कहीं एंगल होगा ये. So this I took this as alpha. So this is your alpha angle. So and then this, if we talk about this tan inverse of root 2 by pi. So this value is you can write this as tan inverse root 2 by pi की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल हो गया, this is perpendicular, this is the base, so this becomes your beta. So this is another angle which is like this. Or you can probably convert this into sine and cos. So if you just write this as sine inverse of you can write this as sine inverse of root 2 by root of two plus pi square, right? So this is, we have 3 by 2. We can just take out half common from here.
cos inverse of root 2 by root of 2 plus pi square. Plus we can write this as cos inverse of root 2 by root 2 plus pi square. And if we just talk about this term and we just forget this term for some time, so this value is sin inverse plus cos inverse, and this value becomes by default, this value becomes pi by 2. Energy. So ये वाला काम तो simple सा हो गया. So we are left with, so these two terms together will make pi by 2. So we are doing video solutions, so we don't have to be very selective or very precise with respect to how we write it. We're doing it in exam. We're solving like we are doing it in exam. So ये pi by 2 हो गया है ना जी. अब क्या बचा हमारे पास? So 1 by 2 cos inverse of root 2 by root of 2 plus pi square plus plus what? This is 1 by 4 sin inverse of 2 root 2 pi by 2 plus pi square plus the leftover amount is pi by 2. Now there are multiple ways of thinking about this. We'll try to see all those ways, was we're doing an inverse question, but how I thought about this more. So it is very less likely to strike this way, but we can probably do it this way. So let's say this value is, I've already taken alpha, beta. So let's say this value is gamma. ऐसा हमने ले लिया. So this implies we can say that 2 root 2 pi by 2 plus pi square. This value becomes sine gamma. And then we can probably think in these terms that we have, this is 2 into this I'm writing this 2 into sine of gamma by 2 cos of gamma by 2. ये purely strike करने वाली बात है. एग्जाम में बड़ा मुश्किल से strike करना. We'll try to see another logical way of doing it, but I'm just discussing this. So it is 2 into sine gamma by 2 into cos gamma by 2. And then I saw this as 2 into root 2 into pi, and there's 2 plus pi square. So the aim was to convert into similar manner as the right hand side. So this is 2 into, we can probably take, I just discussed this I took as, so we can just see this. I'm writing this as root 2 into 2 plus pi square का root. मैंने अभी sin inverse का expression लिखा था. ये वाला expression लिखा था. ये वाला expression लिखा था. So this is root 2 upon root of 2 plus pi square into pi of root of 2 plus pi square. Something like this. This is equal to 2 into sine of gamma by 2 cos of gamma by 2. है ना जी. तो अब ये 2 कट गए, and if we just try and see this expression, if you just try and see this expression, so this value is nothing but, we took this angle as beta. इस एंगल को हमने बीटा लिया था अभी, है ना जी. तो we took this angle as beta, root 2 upon root of 2 plus pi square. So this value is nothing but sine beta, right? And pi upon root of 2 plus pi square becomes equal to cos beta. है ना. ऐसे ही थोड़ा सा patterns identify करने की कोशिश कर रहे हैं, right? So what we can just try and see from this is that implies beta is equal to gamma by 2. है ना जी. तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया कि बीटा इज नथिंग बट गामा बाय 2, है ना जी. अच्छा, अब ये वाला एंगल क्या है? दिस एंगल वी टुक एज अल्फा. सो दिस एक्सप्रेशन इज योर अल्फा. सो दिस वाज योर अल्फा. सो वी आर लेफ्ट विथ this expression becomes alpha by 2 plus, right, this was your gamma, and gamma, this implies gamma is equal to 2 beta. So this becomes 1 by 4 into 2 beta. This is the expression. Plus what? Pi by 2. So we wrote this expression as E, right? So the expression E becomes equal to alpha by 2 plus this 2 beta by 4. So this is nothing but alpha by 2 plus what? Beta by 2 plus pi by 2, right? Which is equal to alpha plus beta by 2, and the alpha plus beta value obviously is equal to pi by 2 because they are angles of a right angle triangle. So alpha plus beta by 2 plus pi by 2. So this becomes equal to pi by 4 plus pi by 2, and this value becomes equal to 3 pi by 4. That's how it is, right?
So I mean, this is a very weird way of solving it. I mean, it's just कि strike करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा. Else, you can go via some other technique or probably best तरीका होता है कि सब कुछ tan में convert कर दो या सब कुछ एक ही तरीके से convert कर दो. So we can also try and see this expression like that. So I'll just copy it. Or we can try and do it via some normal techniques. Right, so when you see tan, you can probably make this is √2, and then this becomes pi, right? Some of you might have done it like this. So it is 2. So if you just take square, so this is root of 2 plus pi square. ना जी, तो यहाँ पे √2 और पाई दिख गया, यहाँ पर √2 और 2 plus pi square दिख गया. इसका cos inverse निकालना है. So this is your beta again, as we say, and this is given as beta. So you can convert it into tan. That's another way of thinking about this. So that you can write this as 3/2 into tan of beta लिखना है, तो beta लिखना है, तो beta can be written as tan inverse of pi by √2, and then I'll write it here plus tan inverse of √2 by pi, right? So this is plus 1/4. अब इस पे आते हैं, तो ये तो straight forward इसमें से we can write this as 1/2 tan inverse of pi by √2, right, plus tan inverse of pi by √2 plus tan inverse of √2 by pi. ठीक है जी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया. तो tan inverse of pi by √2 is this, it is beta, and tan inverse of √2 by pi, it is alpha, and obviously alpha plus beta, this value always is pi by 2. तो ये pi by 2 की एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास यहाँ पर, प्लस 1/4. इसको सॉल्व करना है ना. तो यहाँ पर यू कैन अगेन ट्राई एंड अप्लाई कि tan के टर्म्स में करना है, तो tan का कुछ फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta type. You can try and do something like that. So if we just try and put tan inverse of pi by √2 की बात करते हैं, तो pi by √2 की बात करें, तो we have tan beta equal to pi by √2, है ना जी. So we can try and we can try to make this as 2 tan theta. We can just try and see. So this sin inverse of 2 into pi by √2, ये करना है मुझे. So if I want this, I want to divide by 2. Yeah, so divide both sides by 2, right? So if we divide both sides by 2, we get tan inverse of 2√2 pi by 2 करा हमने, और 2 plus pi square करा. ये लॉजिक कहाँ से आया? Because I want to get pi by √2 here, and I want 2 intact. So I'm dividing this by 2. I'm dividing this expression by 2. So this becomes 1/4 sin inverse of 2 pi by √2. And then this becomes 1 plus pi by √2 का square. I think we are done. We are almost done. ये कहानी चल रही है जी. So what do we get? We get this value was 1/4 tan inverse of pi by √2 plus pi by 2, and this expression becomes 2 tan theta sin inverse of 2 tan theta, you can say something like that, the general formula of sin 2 theta, or 2 tan beta in this case. So it is 2 tan beta upon 1 plus tan square beta, right? So this expression by default becomes equal to 1/4 sin inverse of sin 2 beta. Right, now you need to be careful here. You have to check whether can you write this answer as 2 beta or not. So 2 beta should not exceed pi by 2, right? So ये देखना पड़ेगा. तो बीटा की बात कर लेते हैं कि tan beta क्या आ रहा है. What is tan beta? Pi by √2, and this value obviously seems to be greater than 1. This is 3.14 something, and this 1.414 something. So obviously this value is greater than 1, which implies beta obviously is greater than pi by 4, which implies 2 beta is greater than pi by 2. तो ये गड़बड़ होगी. प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आंसर नहीं आएगा, because 2 beta is exceeding pi by 2. So to bring this into principal value range, you do that standard technique which you have to revise in theory. So you can simply write this as 1/4, and you'll write this as pi minus 2 beta, right? तो पहले एंगल को क्लॉकवाइज लेकर जाओ 2 beta instead of anti-clockwise. So this angle is somewhere here. This angle is somewhere here. As you already might know, it is somewhere here. So you'll take it clockwise first, minus 2 beta, and then you will add pi in this so that you get this principal value range.
और साइन कॉम्पोनेंट की वैल्यू सेम आई बेसिकली, राइट. सो ये बेसिक थ्योरी है, रिवाइज द बेसिक थ्योरी. सो दिस वैल्यू इज 1/4 pi minus 2 beta, and I think we are done then. So this is equal to 1/4 tan inverse pi by 2 क्या है? You can add this as beta again. This is nothing but beta. Tan inverse pi by 4 pi by 2 is beta plus pi by 2 plus this expression has come out to be 1/4 into pi minus 2 beta. Something like this. And then we are done. I think it should be fairly over. कट नहीं रही ना यहाँ पर, क्या गड़बड़ हुई है? 1/4. पहले वाले टर्म में 1/2 था, 1/4. हाँ, यहाँ पे 1/4 लिख दिया हमने, ये गड़बड़ हो गई है, राइट. सो दिस इज बीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस what pi by 4 minus beta by 2, and we just cancel this out and we get 3 pi by 4. ठीक है, so you can try again because you want to convert this into, you don't want to convert this into sin 2 theta. You can convert the whole expression into tan inverse. फिर tan inverse करोगे तो फिर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में निकालने की कोशिश करना. तो you can do it in multiple ways. ठीक है, so this was a question of inverse, and मतलब I would rate this as a medium question, probably a difficult question in exam, medium to difficult question I can rate, right. So because inverse का question है और 3-4 expression आ गए एकदम से आ गया, तो probably we can call it as between medium to difficult question, something like this, right. So second question Shobhit I will be discussing. So hi guys. तो इस सेकंड क्वेश्चन में यार देखो, दिस क्वेश्चन इज लार्जली स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब हमें अच्छा लगता है कि कैलकुलस एग्जिस्ट करती है पेपर में, वरना तो कुछ भी ना सॉल्व हो पेपर के अंदर, है ना. तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं तो फिर ये है कि अल्फा पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है और एक फंक्शन है, एक जी फंक्शन है. तो ये सब तो इम्पोर्टेंट बात नहीं है. एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है सिंपल सा साइन का फंक्शन है. जी ऑफ एक्स फंक्शन में थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की हुई है, और ये बोल रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कुछ हमें निकालना है. तो लार्जली हम देख सकते हैं कि भाई जब एक्स को अल्फा डालेंगे अगर, तो जी ऑफ अल्फा निकालने में प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि जब जी ऑफ अल्फा निकालेंगे तो 2 log 0 और डिवाइड बाय log ऑफ 0. ये तो देखो आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, आपको रियलाइज हो गया होगा 0/0 फॉर्म है जी ऑफ एक्स में. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ पे निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका था. इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी हो सकती थी, बट अभी बहुत सिंपल तरीका था कि हम सीधे सीधे इस जी ऑफ एक्स की लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर दें एट एक्स टेंडिंग टू अल्फा. अब एक्स टेंडिंग टू अल्फा जब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अपॉन टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. एंड इफ समथिंग इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि वी कैन सिंपली differentiate it by apply LH rule. मल्टीपल और भी तरीके हो सकते हैं, बट LH rule will be the best way to go about it. अब LH rule लगाएंगे तो 1/root of x minus root of alpha into फिर root x minus root alpha का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 root x, ऐसे कुछ आ जाएगा हमारे पास. डिनोमिनेटर में देखते हैं तो 1/e raised to power root x minus e raised to power root alpha into e raised to power root x minus e raised to power root alpha का डेरिवेटिव क्या होगा? e raised to power root x, और e raised to power alpha तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा. इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. आई होप आप सबको चेन रूल तो पता ही है कि भाई किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम लोग. ठीक है, अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग अल्फा है, तो अब अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो लिमिटिंग वाले टर्म्स हैं वो सिर्फ यही बच गए, क्योंकि ये सब टर्म्स तो वेल डिफाइंड हो गए. ठीक है, ये सब कैंसिल ही हो गया, और e रेज टू पावर x तो 2 अपॉन e रेज टू पावर x तो बाहर आ गया, और e रेज टू पावर अल्फा डाल दो, x की वैल्यू अल्फा डाल दो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, और बच गया e रेज टू पावर रूट x माइनस e रेज टू पावर रूट अल्फा डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट अल्फा, लिमिट x अप्रोचिंग अल्फा. अभी भी अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 टर्म है. तो अब हम क्या करेंगे इस बार हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं. एक और तरीका था कि e रेज टू पावर अल्फा को कॉमन ले लेते, तो ये e रेज टू पावर रूट x माइनस रूट अल्फा, तो अगर जैसे e रेज टू पावर अल्फा को कॉमन ले लेते, e रेज टू पावर रूट अल्फा को कॉमन लेते, तो e रेज टू पावर रूट x माइनस रूट अल्फा माइनस 1 अपॉन रूट x माइनस रूट अल्फा. तो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है कि e रेज टू पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये वाला टर्म हमारा 1 हो गया, और
2/e⁻² था ही, और ये भी कैंसिल होके इवेंचुअली हमारा 2 आ गया। तो अब आप देखेंगे तो x अल्फा प्लस को अप्रोच कर रहा है, तो g जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। अब f ऑफ 2 की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो वो तो काफी सिंपल है, साइन ऑफ पाई इंटू 2/12 ऐसे कुछ हो जाएगा, विच विल बी साइन ऑफ पाई/6, विच वी कैन सी इज हाफ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर था 0.50। आपको इस तरीके से मार्क करना था, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं थी। हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती थी, अगर g ऑफ x को 2 डालने पे f ऑफ x इंडिटरमिनेट हो जाता तो आप g ऑफ x को एग्जैक्टली 2 नहीं डाल पाते, आपको पूरा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनाना पड़ता, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। तो f ऑफ x जब हमारे को दिखा कि साइन पाई x/12 है, वहीं से हम लोग को खुशी मिल जानी चाहिए। इस एक्सप्रेशन को देख के अगर आप डर गए होंगे तो सॉल्व नहीं हुआ होगा, अदरवाइज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस स्टेप के बाद आप LS रूल भी लगा सकते थे अगर दोबारा से, तो ये e⁻√x इंटू 1/2√x और अपॉन 1/2√x ऐसे कुछ हो जाता, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता। 2/e⁻√α हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये कैंसिल होके तो ये फिर से आ जाता है यहाँ से भी। तो मतलब अगेन एनी ऑफ दिस मेथड दैट आपने अप्लाई किया होगा तो यू वुड हैव गॉट द आंसर। तो होपफुली वो पहला क्वेश्चन नहीं होने के बाद भी ये क्वेश्चन, तो आई वुड रेट इट एज एन इजी क्वेश्चन, मतलब मीडियम तो नहीं लग रहा मुझे, जिसको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, तो आई डोंट सी दैट एज अ वेरी मीडियम क्वेश्चन, बट ठीक है, आई थिंक दैट्स largely it. Alok Bhaiya, so next question Alok Bhaiya will be discussing. All right, so we've discussed the first question, we've discussed second question. Let's move on to the third question. तीसरा क्वेश्चन पढ़े तो it's written that it's in a study about pandemic, the data of 900 persons was collected. It was found that 190 people or persons had symptoms of fever, है ना, ये कोविड की बातें कर रहे हैं, कोविड टाइम्स में 220 लोगों को सिम्टम ऑफ कफ है, उनको बुखार है जी, इनको कफ है जी। 220 लोग, they have symptoms of breathing problems. So one problem is fever, the other problem is cough, then you have breathing problem. आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो 330 लोगों को फीवर और कफ है। तो ये क्वेश्चन की फीलिंग से आई थिंक देयर इज अ फीलिंग कमिंग अप, देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल सेट थ्योरी, राइट। सो और प्रोबेबिलिटी में हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में बेसिक लेवल पे सेट थ्योरी भी होती है। तो 330 लोगों को बुखार भी है और कफ भी है, या दोनों है ना। 350 लोगों को क्या है, कफ है ये, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या दोनों है, समझ आ रहा। 340 लोगों को बाकी दोनों है, दोनों में से कुछ है, और 30 लोगों को सब कुछ है, A intersection B intersection C, something like that, right? So you can probably talk about this question. So I'll just go to the file. So question number 3, right? So let's talk about the solution of this question. तो कुछ भी लेते हैं कि हम मान लेते हैं जी सेट फीवर को F मान लेते हैं, सेट F है। सेट F में जी 190 लोग हैं, है ना। कफ वाले जी, खांसने वाले 220 लोग हैं, और जिनको सांस नहीं आ रही, राइट, है ना। So they have a breathing problem, let's call it as set B. तो these are 220 people, right? Next, तो जल्दी जल्दी से कर रहे हैं जी। 350 330 लोग कैसे हैं, फीवर यूनियन कफ और बोथ, so it is either A or B or both, something like that. So it is 220 or fever union cough. Then you talk about cough union breathing, that is 350 people. I think I've written a wrong value here. इसे सॉल्व करते करते ही गलत वैल्यू लिख दोगे तो वहीं में पड़ जाओगे। 350. Then you talk about fever as well as the breathing problem. So fever union breathing problem is how many people? It is 340 people, right? So it seems to be a this kind of question. And you have been given 30 people have all three symptoms. So it is F intersection B or C intersection B. This value is given as 30. That is what is given. ठीक है जी। तो अब क्या पूछा गया है, if a person is chosen randomly from 900 persons, तो 900 लोगों में से किसी एक इंसान को अगर हमने सिलेक्ट किया है, then the probability that the person has at most one symptom, है ना, कि इस इंसान में at most एक symptom होगा। तो you have to think again like a normal in person. You're not solving some hi-fi exam. You're just thinking like a layman. कि जी at most एक symptom होना चाहिए, और probably you can probably make a Venn diagram of this whole thing. So you have you have F, you have C, you have B, है ना। तो अब at most एक symptom, ये वाले मान लेते हैं फीवर वाले लोग हैं, right? So let's assume जो left वाला circle है, this circle is F fever, this is cough, and this one is the breathing problem people, right? So you need to have at most one.
यानी या तो फीवर हो या कफ हो या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, कोई दो नहीं हो सकती, या कुछ भी ना हो। ये भी ये मिस हो जाता है केवल लोगों से, मतलब आसान क्वेश्चन है पर मिस हो जाता है कि कुछ भी नहीं है वो भी चलेगा, कि यूनिट ऑफ एट मोस्ट यू नो वन सिम्टम, दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक। तो एग्जाम में ये थॉट आना जरूरी था। कुछ लोगों ने इसमें सिर्फ ओनली फीवर या एट मोस्ट वन को एग्जैक्टली वन मान लिया, राइट। तो कुछ लोगों ने सिर्फ ग्रीन एरिया का आंसर दे दिया, और वो मतलब दिस एन इजी क्वेश्चन, आई वुड से इट्स एन इजी क्वेश्चन, इजी टू मीडियम एट मैक्स ही सॉल्व करना पड़ेगा, बट मीडियम लिखने का मन नहीं कर रहा है, ये इजी है, राइट, है ना जी। तो अब इसमें ये निकालना है तो कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। अब हमें क्या चाहिए? सो वी नीड टू फाइंड एफ। सो इफ वी वांट टू फाइंड ओनली एफ, या पहले तो हमें क्या चाहिए? वी नीड टू फाइंड एफ यूनियन बी यूनियन सी, right? You need to find number of elements in this F union B union C, right? So obviously F union B union C की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें F B, actually मैंने F ही लिख दिया है, तो this is actually number of elements in F which I'm writing as F. So I'll simply write this as F union B union C, which by default means obviously it is number of elements in F union B union C. ठीक है जी, तो हमारे पास F की वैल्यू है, B की वैल्यू है, C की वैल्यू है, and then we need obviously the value of this. So this is sigma of number of elements in F union B union F plus number of elements in B plus number of elements in C, right? Minus sigma of number of elements in F intersection B, let's say all the three terms, and then this is plus number of elements in F intersection B intersection C. That's what you have to figure out, है ना। तो हमें यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू है, हमारे पास ये वाली वैल्यू है, हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं, और हमारे पास ये वाली वैल्यू है, हमें ये तीन वैल्यूज निकालनी है, तो वो निकल ही जाएंगी, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। सिर्फ वी जस्ट टॉक अबाउट दिस इज ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इसको हटा ही देते हैं, लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ इट। सो दिस इज व्हाट इज रिटन, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं इन द सेट, एंड राइट दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो भी निकाल लेते हैं। सो इफ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, मैं यही निकाल लेता हूँ F intersection union C. I'll just rub this off. So we know that the value of F intersection number of elements in F intersection B intersection C, this value is given as 30, right? तो एक तो मैं पहले यूनियन निकाल रहा हूँ, पहले ये पूरा यूनियन क्यों निकाल रहा हूँ? बिकॉज मैं टोटल नंबर ऑफ पीपल में से यूनियन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला ऑरेंज एरिया आ जाएगा, राइट। सो मैं पहले यूनियन निकाल रहा हूँ, स्टैंडर्ड एक्सरसाइज। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन C को निकालना है, तो आई कैन राइट दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन C। तो यूनियन का फॉर्मूला लगा रहे हैं उल्टा करके ताकि इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल जाए। सो यूनियन पता है तो निकल जाएगा, F की वैल्यू कितनी है 190 प्लस C की वैल्यू कितनी है 220 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F यूनियन C 330 ना जी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई ना जी? अब ये 200 ऐड कर दो, 220 में से तो कितना हो गया ये 420, 410 में से 330 उड़ा दो 70, 180, so this value comes out to be 80, right? Similarly we have to figure out n number of elements in I'll just create some space, because I can create some space using technology which can't be done on a whiteboard. So number of elements in C union B, so this is equal to number of elements in C plus number of elements in B minus number of elements in C union we want to find number of elements in intersection, so this is B here. So number of elements in C is 220 plus B के elements कितने हो गए 220 हो गए, C union B के elements 350, तो 440 minus 350 हो गया, तो ये 50 plus 40, this value comes out to be 90. So like number of elements in F intersection B चाहिए, so that is number of elements in F plus number of elements in B minus number of elements in F union B, है ना जी। F के एलिमेंट कितने हैं 190 प्लस B के 220, यूनियन के एलिमेंट्स कितने हैं 340, राइट। सो दिस इज अगेन 410 माइनस 340, तो ये 70 हो गया, राइट। तो ये नंबर 70, 80 और 90 आ गया बेसिकली, दैट्स हाउ इट इज। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 70, 80, 90 आ गई है, तो आई थिंक वी आर डन। ये यूनियन की वैल्यू तो ओवरऑल आ गई है, सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F प्लस C प्लस B, तो इट इज 190 प्लस 220 प्लस दिस वैल्यू इज अगेन 220। तो ये बस सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो ये क्वेश्चन यू कांट मिस दिस एग्जाम, ये क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो मतलब बहुत ही गड़बड़ है, राइट। इज अ बेसिक क्वेश्चन, मतलब जेई मेंस लेवल क्वेश्चन ही है एक तरह से ये। तो ये कितना होगा, F इंटरसेक्शन की बात करें तो 70 प्लस 80 प्लस 90,
तो ये तो सीधा आ गया 80 × 3 कर लो ना, एवरेज कर लो तो 80 वैल्यू आएगी, तो 40 हो गया सम, है ना, प्लस दिस वैल्यू इज 30। सो यूनियन की बात कर लो तो कितना हो गया ये 440 प्लस 200 करोगे तो कितना हो गया ये 640 में से 10 उड़ा दो 630, है ना, सब्ट्रैक्शन एडिशन में गड़बड़ हो जाती है कई बार, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ ना कर दी हो एवरी टाइम, यू नो इट इज दिस इज अ फीलिंग, राइट। सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 660 minus 240, so it is 2 and then this is वो 420 आ गया। तो ये यूनियन का नंबर जो है 420 आ गया, राइट। सो ये दिस होल रीजन इनसाइड रीजन इज 420, राइट। नाउ सो दैट इम्प्लाइज आई नो दैट ये जो ऑरेंज रीजन है, सो व्हाट इज दिस ऑरेंज रीजन? ऑरेंज रीजन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल minus number of elements in F union B union C, or you can say it is number of elements जो कि कोई भी बीमार नहीं है, इनमें से nobody is बीमार। ये बचे हुए एलिमेंट्स ये कितने थे? 900 लोग थे ना टोटल, 900 people, so you have 900 people minus 420, right, so this value comes out to be 480। 480 तो बिल्कुल बीमार नहीं है, ना खांसी है ना जुकाम है ना बुखार है, और आराम से चिल कर रहे हैं, कोई फाइट नहीं है लाइफ में। नाउ वी नीड टू फाइंड ओनली F, number of elements in only F, so it is what number of elements in F, right, माइनस क्या करोगे? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन B, और उसमें ऐड कर दोगे F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो ओवरऑल कॉमन टर्म है 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये काम करना है, मतलब बस थोड़ी मेहनत करवा रहे हैं जरूरत थी IIT में एग्जाम में। लॉजिक तो हो ही चुका है पहले से। 190 माइनस इंटरसेक्शन वैल्यूज, अगर गलती ना हो जाए, बस चौकन्ना रहना है। 330 और 340, सो 330 340, और इंटरसेक्शन की बात अगर हम करें ओवरऑल इंटरसेक्शन की वैल्यू आई थिंक इट वाज 30, लिखा था यहाँ, लिख दिया था जस्ट 30, है ना जी। ये क्या गड़बड़ हो गई है? स्टेट इज समथिंग रॉन्ग है, there's something wrong which has been done only if इंटरसेक्शन में मैं यूनियन की वैल्यू डाल रहा हूँ, देख रहे हो, है ना। तो ये लो, so these were union values not the intersection values, इंटरसेक्शन तो मैंने निकाला था यहाँ पर। so F इंटरसेक्शन C की वैल्यू आ रही है 80, right, so this value is 80। F इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ रही है 70, तो बच गए। ये वैल्यूज गलती से पॉजिटिव आती तो आगे गलती हो जाती जी। तो 150, 80 प्लस 70 150 हो गए, 190 से माइनस 40 प्लस 30 70, so 70 people only have, you know, fever, that's the thing। Then we talk about number of elements in number of elements in C, number of people having only curve, number of elements in C minus number of elements in C intersection F, number of elements in C intersection B, plus number of elements in F intersection B intersection C. So this is pretty clear. Number of elements in C is how many? This is equal to 220 minus C intersection F. C intersection F is how much? 80 elements. C intersection B is 90 elements plus 30 elements. Right, so this is 250 में से कितना उड़ाना है? 170, है ना जी। 12 हो गया, तो ये 30 50 80 हो गया ना, तो सीधा 15 में से 8 के 7 80 हो गया। That's what it is, right? So this is equal to 80. So only C comes out to be 80, and then we talk about number of elements in only B. It is pretty clear. This number of elements in B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in B intersection F, right? तो obviously एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिखोगे, तुम सीधा वैल्यूज लिख दोगे। You'll be just simply writing the values। B की वैल्यू कितनी है जी? 220। B intersection C is 90, भी लिखा था हमने। And then we're talking about B intersection F. So B intersection F is 70. So it is 90 minus 70 plus 30. Right, so this is again 250 plus 160 हो गया, ये वैल्यू 160 हो गई है। Right, so this is equal to 90 वैल्यू, है ना जी। ये कहानी आ गई है। तो ओनली F में कितने एलिमेंट्स हैं जी? We have 70 elements in only F, है ना जी। एंड वी टॉक अबाउट ओनली C की बात करें
So we have got how many elements in this? This is 80 elements. And we talk about only B, so this is equal to 90 elements. नहीं गलती ना हो जाए. और बाहर के एलिमेंट्स कितने थे? 480 आए थे बाहर के एलिमेंट्स. तो ये तो चाहिए हमें. So number of elements with at most one symptom is what? Number of elements or number of people with no symptoms. Right, plus sigma number of elements with only F. So this is only F, only B plus only C. This means that so this is 480 plus what? कितना ये भी 70 plus 80 plus 90 है 240. राइट 480 plus 240 0 12 1 ऊपर 6 720 लोग. यानी 720 लोगों को at most एक symptom है. Right, so that's how it is. So I think it was a question of the probability question है, but set theory पे based question है. So probability at most one symptom is 720 by what? 900. So this is equal to what? 8 9 8s and then 9 10s. So this value is 8 by 10. So this value comes out to be 0.8. Right, so 80% लोगों को there's only one symptom. That's how it is. पर एग्जाम में भी क्वेश्चन कर लिया तो वहीं पे चेक कर लो एक बार, कहीं गलती ना हुई हो. एक बार वेन डायग्राम को ढंग से देख लो, है ना. ये F इंटरसेक्शन C, कोई बाद में मौका नहीं होता एग्जाम में वापस आने का. जी ये 80 थे ये वाले और इंटरसेक्शन था 30, तो ये नंबर है 50, है ना. और F इंटरसेक्शन B का 70 नंबर था, ये था 30, तो ये नंबर है 40, है ना. और B इंटरसेक्शन C का नंबर कितना था? 90, तो ये नंबर है 60. दैट्स व्हाट इज, है ना. एक बार ये चेक भी कर लिया, सम वम करके देख लिया कि ये वैल्यू मैच कर रही है नहीं कर रही है. राइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. इफ यू आर फीलिंग दैट यू माइट हैव डन सम मिस्टेक, चेक इट at that point in the exam. This is for people who might be seeing this video in future. Right, so this is a simple question. I would rate this an easy question. Probably थोड़ा लंबा हो गया तो medium बोल दो, easy medium, but concept wise तो ये आसान ही है. It is an easy medium question. Right, let's move on to the next question quickly. Let's talk about this question. Right, so this is question based on complex numbers. Now now let Z be a complex number with non-zero imaginary part. तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है जी, है ना जी. यानी आयोटा वाई में वाई नॉन जीरो है, समथिंग लाइक दैट. एक्सप्रेस आयोटा वाई. आगे चलते हैं. इफ सो दिस इज अ फंक्शन गिवन एज fz is 2 plus or it's a complex number 2 plus 3z plus 4z square upon what? 2 minus 3z plus 4z square. राइट, तो ये चल रही कहानी, है ना. ये नंबर दे रखा है, इज अ रियल नंबर. तो ये fz जो है फंक्शन ना बोलो, ये नंबर ही बोल लो. बेटिकली फंक्शन बोलोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा. ये नंबर है कोई जिसमें कि z जो है वो एक्सप्रेस आयोटा वाली फॉर्म में है. ये मन में चल रहा है z इज इक्वल टू एक्सप्रेस iota y where x is not equal to y is not equal to 0 for sure. Right, x and y belong to real and y is not equal to 0. Right, so fz ना बोल के इसको कोई नंबर बोल दो. Let's call this as number. Right, है ना. So ये बोल रखा है कि this number is a real number. It is told that this number is a real number, and then you have to find the value of mod z square. Right, तो अब अगर ये रियल नंबर है ना, ये कुछ भी नंबर ले लो, q a b c d, a ले लो, a नंबर ले लो, n में g लग रहा था, वो z को ऐसा लिख दिया n. राइट, सो दैट्स व्हाई जस्ट चेंज इट टू a. तो एक नंबर है a, और अब तुम्हें mod z स्क्वायर निकालना है, और ये बता रखा है कि दिस नंबर बिलोंग्स टू r, दिस रियल नंबर. राइट, है ना जी. तो अब ये रियल नंबर की क्या कहानी है, तो you have to figure out. So this is obviously a complex number, but it turns out to be real. तो एक तरीका तो मतलब तो बेसिक तरीका है, this implies हम क्या बोलते थे, if z belongs to r, that implies either we say z plus z minus z conjugate by 2 iota, which is the imaginary part, is 0, which automatically implies z is equal to z conjugate, है ना. तो यही याद हो गया कि अगर प्योरली रियल है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, ये इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, तो उसका कॉन्जुगेट और वो दोनों सेम होंगे, बिकॉज वो कॉन्जुगेट के बाद आयोटा वाले टर्म में नेगेटिव आता है और आयोटा वाला टर्म तो जीरो है. राइट, सो ऑल यू हैव टू अप्लाई इज कि ये नंबर, सो इफ दिस बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज a प्लस a कॉन्जुगेट, राइट, और a इज इक्वल टू a कॉन्जुगेट. दिस इज व्हाट यू हैव टू अप्लाई.
है ना। तो ये प्राइमा फेसी क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि जी ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब दिस और इसका कॉन्जुगेट बराबर है, या ये लगा दोगे, कुछ लोग ऐसे लगा देंगे। जी, तो अब ये और उसका कॉन्जुगेट करोगे तो अगेन देखो, मतलब दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो एंड इट इज अगेन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एन एग्जाम, and well, you might be in all sorts of pressure, you might be under time pressure, and और previous question नहीं हुआ या कुछ भी, तो मतलब कई बार नहीं होता है, मतलब एग्जाम में देखो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर अगर तुम ये कर दोगे ना कि ये 2 प्लस, ये एक्सप्रेशन लिख दिया 2 + 3z + 4z² अपॉन 2 - 3z + 4z², राइट, is equal to 2 + 3z conjugate + 4z² का कॉन्जुगेट, और ये करने लग गए तो यहाँ पे यहीं पे ना, मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट, है ना। सो यू कैन ट्राई एंड सॉल्व दिस इफ यू अब तो बिल्कुल वेले हो, कुछ है नहीं करने को जिंदगी में, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड सी, है ना। 3 टर्म ये वाले, इसको इन 3 टर्म से मल्टीप्लाई करो, क्यूबिक इक्वेशन आएगी, ये z² × z, चलो ये तो मॉड बन जाएगा, है ना। बट ये वाला z × z कॉन्जुगेट × z² करोगे तो मतलब इट विल बी काइंड ऑफ अ मेस, right? So you should try to simplify this in some ways, right? So one of the ways which probably can be thought, but again मतलब ये देखो, not necessary that you might be able to think कि we divide by z² on both sides. So we divide by z² on both sides, means both numerator and denominator we divide. So what we get is 2 by, instead of z², let's divide by z. So let's divide by z. So this is 2 by z plus 3 plus 4z हो जाएगा ये. So I'm dividing both numerator and denominator by z upon ये 2 by z minus 3 plus 4z हो जाएगा ये. This is the term which we get. Right? है जी. तो इसमें भी ना ये मतलब z² एलिमिनेट हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले ना इसको फ्रैक्शनलाइज कर. दिस इज नॉट द right way of going about it. Let's try to reduce some of the terms. Either we reduce numerator or denominator. Denominator मैं देखो इसको ऐसे कर रहा हूँ. I'm writing this as 2 - 3z plus 4z² plus 6z. That's what I'm writing upon 2 - 3z² plus 4z². Yes, so this would be a better approach. है ना जी. हमने ये काम करा. अब ये काम हमने क्यों करा, है ना, तो ताकि ये एक टर्म तो हटे, न्यूमरेटर का टर्म हमने अब थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है ना. वी हैव गॉट rid of the z² from numerator, plus we have got 6z upon 2 minus 3z by 4z², right? So this is kind of striking in exam. कैसे करो, किसी और तरीके से भी हो जाएगा, but this is probably the way which can be thought of, but this is again requires practice कि दोनों में लगाने में बड़ा गड़बड़ है. अच्छा, z से डिवाइड करते हैं दोनों साइड को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो और गड़बड़ है. तो ये अभी कोई टर्म ये सिंपलीफाई हुआ नहीं था बहुत ज्यादा, फिर इसमें मैं कॉन्जुगेट लगाता तो कुछ फायदा नहीं होता. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ. नाउ व्हाट आई एम फर्दर डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग दिस बाय z. सो दिस इज 2 by z minus 3 plus 4z, right? So this a term becomes equal to 1 plus 6 by 2, well, let me just write 2 like this, by z plus 4z minus 3. ठीक है जी, कहानी चल रही है, राइट. तो अब अगर ये टर्म रियल है तो पक्के से नो, इफ a belongs to r, then that for sure means that 2 by z plus 4z has to belong to r, because just all terms are real terms, है ना. तो ये मतलब, तो we have broken down the question, we have reduced the question from this term being real to this term being real, है ना. अब तो now you can apply. This implies we can say that 2 by z plus 4z is equal to 2 by z conjugate. तो ये मैं अगेन प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 2 by z plus 4z, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं. 2 by z conjugate plus 4 into z conjugate. I've applied multiple properties. मल्टीपल टाइम्स में ब्रेक हुआ है, पहले इसमें ब्रेक हुआ है, फिर इसमें ब्रेक हुआ है, फिर a by b में conjugate is a conjugate by b conjugate. Similarly, a into b conjugate is a conjugate into b conjugate, which is where a is obviously a real number का z conjugate आ जाएगा. You apply properties of complex number. This is very obvious thing, right? So let's just try and do this further, solve this further. तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ. 2 into 1 by z minus 1 by z conjugate plus 4 of z minus z conjugate. This value is equal to 0.
So this is equal to 2 into, I'll just take negative outside और चलो लिख लेते हैं, confusion ना हो जाए. So this is equal to z conjugate minus z upon z conjugate is equal to mod z square plus 4z minus z conjugate is equal to 0. So I'll just take z minus z conjugate as common. So this becomes minus 2 by mod z square. So this term becomes mod z square, right? Plus what? 4. This value is equal to what? 0. I think we're done. This implies either z is equal to z conjugate or minus 2 by mod z square plus 4. This value should be equal to 0. यहाँ से आ गया. Mod z square is equal to what? So this is 2. I think it is 2 by mod z square. That is equal to 4. That implies mod z square is equal to half. Right? है ना जी. और ये z is equal to z conjugate की अगर हम बात करें, ये पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. दे रखा है ना z इंटू, ये देखो यहाँ पे देखा है, it has a non-zero imaginary part. तो z is equal to z conjugate, it is not possible. Right? तो ये होने का मतलब क्या है? This implies that imaginary part of z is again equal to 0, which is not happening. Right? तो आंसर यही हो गया, mod z square is equal to half. ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू आ गई. तो मतलब it is not that difficult question. After seeing the solution, is not that difficult question. But again, what matters is the approach. तुमने यहीं पे इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो फंस गए, है ना. फिर लंबा चौड़ा करके कुछ करोगे, होने को तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा. मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन ट्राई एंड अटेम्प्ट इट. तो यहाँ पे z स्क्वायर को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म और z स्क्वायर आ जाएगा और एक टर्म में z आ जाएगा. तो कुछ ना कुछ हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए. पर इसके 3 टर्म को इसके 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना मतलब थोड़ा वाहियात काम है एग्जाम में, वैसी मैथ्स. तो मतलब you should try to reduce things. So if you were able to think of reducing either numerator or denominator, है ना, तो ये हो, मतलब I would rate this as a medium to difficult question, right? Strike कर गया तो कर गया, नहीं करा तो मतलब फंस गए, something like this, है ना. न्यू लो जी, अगला क्वेश्चन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो भाग ही जाओ, है ना. कुछ लोग ऐसी फीलिंग हो जाती है. तो मतलब ट्राई कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ना तो ना ही, विल थिंक लाइक अ लेमैन, करने की कोशिश करेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, खत्म. दैट्स हाउ दैट शुड हैव बीन द थॉट, है ना जी. तो अभी अगर बोल रखा है z conjugate denotes the complex of it, let z conjugate denote the complex conjugate of a complex number. Z obviously we know that, and let iota be iota root minus 1, पता है हमें. In a set of complex numbers, the number of distinct roots of the equation, है ना जी. They are talking about distinct roots of an equation which has been given to us. तो हमें क्या गिवन है? देखो देसी तरीका है, एक तुम अपने आप खुद से ट्राई करोगे, कुछ ना समझ आए, इक्वेशन दे रखी है, यू हैव बीन गिवन अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, तो कुछ ना समझ आए तो एंड कहानी पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, है ना. ये रामबाण है जी. कुछ ना समझ आए तो पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. बट वी कैन ट्राई एंड अप्लाई द कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स. एंड द फर्स्ट टेक्निक, सिंपलेस्ट टेक्निक व्हिच वी अप्लाई इज टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स. शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट. दैट्स द बेस्ट वे, है ना, दैट यू टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स. तो इसमें तुम मॉड ले लो दोनों साइडों पे, है ना. अब दोनों साइडों पे मॉड लोगे तो मतलब एकदम से इंस्टेंटली कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ z कॉन्जुगेट है और यहाँ z स्क्वायर है ना. तो शायद कुछ थॉट आ जाए, अच्छा चलो इस z कॉन्जुगेट को एक साइड ले जाए, थोड़ा उथल पुथल करनी पड़ेगी, है ना. तो शायद z कॉन्जुगेट को एक साथ ले जाए, z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट लिख दें, इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ z स्क्वायर हो गया, है ना जी. तो ये शायद थोड़ा बेटर हो. तो इससे फैक्टर्स बन गए. सो व्हाट डू वी गेट z conjugate into 1 minus iota, that value is equal to z square into 1 plus iota. And now you take mod on both sides. That was the first simplest thought which should come in our head when we talk about complex numbers or solving complex equations, right? So we take mod on both sides and apply properties of mod. So mod z into mod of 1 minus iota, that is mod z square. And obviously I can take square outside into mod of 1 plus iota, है ना. अभी दोनों सेम है, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा. अभी देखो मैं तो ज्योमेट्रिकली देख रहा हूँ, ये 1 प्लस आयोटा है, यहाँ 1 है, यहाँ आयोटा है, तो ये 1 है और ये आयोटा है, तो ये नंबर है 1 प्लस आयोटा, और ऑब्वियसली दूसरा नंबर क्या है, माइनस आयोटा. तो ये कोई निकाल थोड़ी रहे एग्जाम के अंदर, ये 1 माइनस आयोटा नंबर है. ऑब्वियसली इन दोनों का मॉडुलस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑब्वियसली क्या है, सेम है. इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर मूव सोच लें तो इन दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम हो, कैंसिल आउट.
द इक्वल वैल्यूज, राइट. सो ऑब्वियसली ये मतलब करने में कोई मॉड निकाल रहे हैं, तो मॉड z conjugate can be written as mod z, this is mod z can be written like this, and this is minus mod z square, this is equal to 0, right? So again you'll take factors, that implies mod z into 1 minus mod z, that value is equal to 0, that implies either mod z is equal to 0 or we can say mod z is equal to 1, right? So if mod z is 0 to the point हो गया, z is equal to 0 हो गया एक नंबर, एक रूट तो आ गया z is equal to 0 है ना, और हाथ क्या चेक करके देख लिया क्या 0 सेटिस्फाई कर रहा है, z0 z कॉन्जुगेट 0, ये भी 0, सब कुछ 0, ये वेरी नाइस, ये बढ़िया काम है, 0 is equal to 0, इससे बढ़िया ड्रामा कुछ नहीं होता जिंदगी में, है ना. तो mod z की वैल्यू क्या आ गई जी, 1, राइट. सो वी हैव गॉट mod z वैल्यू एज 1. नाउ वी हैव टू यूज दिस एंड तो हमने यहाँ पर इसमें हमने mod ले लिया था टू गेट सम इंफॉर्मेशन. नाउ वी नो दैट द mod z वैल्यू इज 1, है ना. सो इफ वी कम बैक टू दिस इक्वेशन, right, so we just come back to this equation and just copy paste this. So now I'll just write it. मैं इसी इक्वेशन में लिख रहा हूँ, z conjugate into 1 minus iota was z square into 1 plus iota, right? So this is another question, है ना. अब हमें इसमें mod z equal to 1 की इक्वेशन यूज करनी है, mod z is equal to 1 की वाली इंफॉर्मेशन यूज करनी है. तो you can always write this as, you know, mod z square is equal to z into z conjugate is equal to 1. That's how it is. So that is what is my aim. I want to get rid of this irritating z conjugate. That is what is my aim. So I multiply it by z and I multiply this by z. है ना जी. तो आगे चलते हैं. तो ये हो गया mod z square into 1 minus iota, it is equal to z cube into 1 plus iota. है ना, एकदम सांस में सांस आ गई जी. वो हुई तो हो गया, खत्म है. तो ये तो क्लास कॉपी का क्वेश्चन है. If you have revised the class copy, it is a question of class copy. It is finding cube roots of some complex number. ये दिख जाना चाहिए एकदम से जी. ये वैल्यू तो 1 है, this value is 1, and you can always take this down and then you can try to rationalize that feeling of putting up a real number, you know, not rationalize exactly, putting up a real number in the denominator. तो कर लो. So this implies, आगे चलते हैं. So that implies z cube is equal to 1 minus iota upon 1 plus iota. Then you multiply by 1 minus iota and you divide by 1 minus iota, right? So this is z cube is equal to what, 1 minus 1, right, minus 2 iota by what, 1 minus, ये 1 plus 1 हो गया basically, इसका minus 20 पर करेंगे तो that's the value, right? So 1 minus 1 cancels out. ठीक है जी. तो ये कहानी आ गई. So this implies z cube is equal to what, minus 2 iota by 2, which is equal to minus iota आ गया. तो z cube minus iota आ गया, तो cube roots of minus iota निकालने हैं. So this is e to the minus iota pi by 2. ये तो है ना, right? I'll probably just, you know, do upon my pen which I take. All right, I'll do this after question number 7. So let me just solve this. So reduce the font. So anyways, so this is z cube into minus 2 iota by 2 minus iota into e to the minus iota pi by 2. तो ये एकदम से दिखना चाहिए कि जी ये this is minus iota, तो obviously this is a clockwise argument, e to the power minus iota pi by 2. So that implies z cube is equal to what, e to the power minus iota pi by 2 plus 2n pi. इसलिए लिख देते हैं, या और we can write this as 2n pi minus pi by 2, something like this. This is a way of writing, है ना. तो ये z की वैल्यूज आ गई, तो z की डिस्टेंट वैल्यूज 3 आ जाएंगी, और e to the power iota 2n pi minus pi by 2 by 3. That's how it is. Just equal to what, e to the power iota, है ना, ये हो जाएगा 4n minus 1 by 3, 6. This should be 6 pi, है ना. और यहाँ पे n की वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाएंगी, तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, n is equal to 0, 1 and 2, because there can be three different roots. That's it, right? तो ये आ गया, एक रूट ये है, and z is equal to 0. चेक कर लो इसमें कोई भी 0 तो नहीं है, गलती से 0 हो गया. n equal to 0 पे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा 0. n equal to 1 पे देख लो आ रहा है, 4 minus 1 तो pi by 2 हो गया, e to the power pi by 2. तो रूट्स क्या आ गई,
e to the power 0 लगाओगे तो e to the power minus iota pi by 6, 1 लगाओगे तो कितना आएगा 4, minus 1 is 3 by 2 e to the power iota pi by 2, ये तो iota आ गया, और 2 लगाओगे तो कितना आएगा 2 2 is 4, right? So probably you can take minus 1 if you just put minus 1 here, so minus 5 by 6 आ जाएगा, तो e to the power minus iota 5 by 6, right? So instead of 2 I'm putting minus 1, any 3 consecutive values, right? तो ये 3 distinct roots आ गए और चौथा ही आ गया, खत्म. So we have 4 distinct roots. ये तो पूछा था यहाँ पर, मैं roots भी निकालने थे, right? So number of distinct roots is this value is 4. ठीक है जी. So again I would rate this as a medium to difficult question because it is complex. Some call it as difficult because it is complex, but it's a doable question in exam, right? If you've done enough practice, we go by the rules. हमने z conjugate के साथ लिखा, फिर दोनों साइड मॉड लिया, मॉड लेके जी z की वैल्यू निकाल ली, फिर मॉड को यूज करने की कोशिश करी. कुछ ना समझ z इक्वल टू है, वो तो करना बहुत मुश्किल एग्जाम के अंदर. इतना अटेम्प्ट करने के बाद इतने एफर्ट और लगाना मुश्किल होगा. या तो तुम z इक्वल टू ऐसे शुरू करोगे या सीधा यहीं से करोगे. दैट्स हाउ इट इज, है ना जी. तो आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let's talk about this question. Right, question number 6. So it says that let L1, L2, L3 be consecutive terms of an arithmetic progression. अच्छा जी, with common difference D1. तो L1 से L100 तक जो progression है उसका common difference D1 है. W से W100 तक be consecutive terms of an arithmetic progression with common difference D2. अच्छा जी, 2 arithmetic progression दे दी हैं और D1 D2 को मल्टीपल दे दिया 10. अच्छा, 5 into 2 होगा या 1 into 10 होगा या कुछ और भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन एनीवेज, है ना. फॉर ईच आई, अच्छा जी, 1 to 200 लेट आर आई बी रेक्टेंगल. ओहो, अच्छा जी, तो ये लेंथ है और ये विड्थ है. इट बी रेक्टेंगल विद लेंथ Li and Wi. So we just talk about the solution. They're talking about a rectangle. So where this is the length of the ith rectangle and this is the width of the ith angle. So this is Ri, right? और इसका एरिया डिफाइन कर दिया AI. So AI obviously will be Li into Wi, है ना जी. एंड एरिया भी AI. फिर बोल दिया A51 माइनस 50 की वैल्यू 1000 दे दी है और A100 माइनस 90 की वैल्यू निकालनी है. तो करो, क्या करोगे, मतलब हाथ पर चलाने हैं जी. A50 माइनस, सॉरी यहीं पे गलती हो गई जी, 51 लिखना था, 50 लिख दिया. A50 की वैल्यू दे रखी है 1000. So let's just try to put A50, right? A50 will be what? A51 will be L51 into W51 minus L50 minus into W50. That's what it should give you, some information. Let's just try and see what information it gives us. L51 क्या होगा जी? It is the first term plus 50 D1, right? I think the common difference of this was D1, and then W will be the first term plus n minus 1 D2, right? That value is बहुत irritating question है ना. पर वो ये इरिटेशन हो रही है, क्या करें, किसी को चप्पल मारने का मन कर रहा है. ये क्या क्वेश्चन दिया है, तंग कर रहे हो. तो ये मतलब एग्जाम इज अबाउट पेशेंस, कि ये कौन मल्टीप्लाई करे. छोड़ो, अरे करना पड़ेगा, छोड़ो, नहीं कर सकते. ये तो है क्वेश्चन, शायद हो जाए, बाकी तो हो भी ना रहे, है ना. तो करना पड़ेगा. That's how it is. So this is L1 W1 plus what? L1 50, L1 W2, L1 D2 plus 50 D1 W1 plus 2500, right? D2 D1 D2, है ना जी. That's how it is. 2500 D1 D2, है ना जी. माइनस L1 W1, ये बढ़िया है, घटिया ये, है ना. माइनस 49 L1 D2, है ना जी. माइनस 49 D1 W1, right? So I'll just try to put this on the left side. ये टर्म आ गया, है ना जी. अब ये 49 into 49 करना पड़ेगा जिंदगी में, है ना. तो ये 50 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना. 2500 प्लस 1 माइनस कितना हो गया, 2 into 50 into 1, 100. 2401 हो गया मेरे ख्याल से ना. तो ये 2401 D1 D2, this is equal to 100, is given to you, right? So this value becomes equal to what? I think this is L1 D2
अगर इन दोनों टर्म्स को देखो, नेक्स्ट दो टर्म्स को देखो, तो ये वाले टर्म्स d1 w1 and then this is d1 w1, so this is equal to what, d1 w1 है ना। 2500 में से 2400 एक उड़ा दो तो कितना हो जाएगा, 99 d1 d2। तो हिंदी में सॉल्व करना है, हिंदी में काउंटिंग नहीं आती जी, कैसी बातें कर रहे हो, है ना जी, जल्दी कहानी। एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज 100। आई थिंक d1 d2 की वैल्यू दी हुई थी, हाँ d1 d2 दे रखा है 1000, 1000 कह रहा हूँ 10, so it's d1 d2 is given as is 10। ठीक है, एक मिनट, ये 10 है, लो ये वाली वैल्यू दे रखी है 1000, एवरीवेयर दिस इज 1000, so this value is given as 1000। ठीक है, so this value becomes 990, right? So this implies, right, because obviously d1 d2 is equal to 10, right? So L1 d2 plus d1 w1, this value comes out to be 10। ये बढ़िया बक्सा नंबर 445 है ना जी। We've got this information which was hidden in this irritating information that the difference of two consecutive areas is 1000। ठीक है जी, अब क्या लगाना है, अब इसमें कुछ ना कहीं यूज हो रहा होगा, और क्या नहीं होगा तो क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या करेंगे जी, होगा तो होगा, और ना आगे बढ़ेंगे, इतना समय थोड़ी है रोने पिटने का कि फोन कर रहे हैं जी कहाँ न्यूज़लेटर, बुला के लाओ, नहीं मानते मत मानो, पूछ जाओ, ये बोलेगा न्यूज़लेटर। A100 माइनस A90 है ना जी, शुरू हो जाओ। तो A100 कितना है जी, एरिया तो L100 इंटू W100 माइनस L90 इंटू W90, कि जी हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो जी कोई और आएगा साथ में सॉल्व करने के लिए, तुम्हें करना पड़ेगा ऑब्वियसली। L1 प्लस 99 D1, हमारा मन ना करा तो कोई नहीं, किसी और का करेगा, वो कर लेगा। W1 प्लस 99 D2 माइनस L1 प्लस 89 D1, and this is W1 plus 89 D2. I hope I'm writing the symbols correctly. I'm writing in a speedy manner and then I'm prone to mistakes. I hope it is fine. D1 D2 पे चेक कर लिया एकदम से जी, गलती ना हो, एकदम थम जाओ। राइट, L1 W1 obviously this will cancel out। ये फिर मजाक हो रहा है जिंदगी का, प्लीज अब नहीं कर सकते मैं बार बार, है ना। तो L1 ये देख लो, L1 99 D2 तुम खुद से कर रहे होगे, L1 W1 तो कट जाएगा, L1 और 89 कर लो, वैसे 10 का डिफरेंस आएगा। इट इज 9 L1 D1 इंटू 99 माइनस 89 होगा एक टर्म, प्लस ये एक्सपीरियंस आ गया जी, L1 W1 फिर L1 D1 कहाँ से आ गया, L1 D2 था, so L1 W1 and then L1 D2 L1 W1 and then we'll do L1 D2, so this is 89। आगे चलते हैं, 99 D1 W1 and this will be 89 D1 W1, right? So this will be again D1 W1 99 minus 89, right? That's what it will be, है ना जी। तो थोड़ा थोड़ा ढंग से सोचोगे तो आगे चलते हैं, फिर आएगा नेक्स्ट टर्म 99 to 99 D1 D2 and this is 89 into 89 D1 D2, so this will be plus D1 D2 99 square minus 89 square। ठीक है जी, सो हमें L1 ये तो काटना था ना, वो लिखा ही नहीं मैंने एक टर्म, माइनस यहाँ पे एक टर्म था L1 W1 which obviously will cancel out। तो देख लो ना, ये भी 10 है और ये भी 10 है, L1 D2 और D1 W1 की वैल्यू थी 10, so this is equal to 10 times of L1 D2 plus D1 W1। I think we are done। D1 D2 is 10, this value is 10, है ना जी, इंटू ये, अब ये मनूज कहानी है 99 प्लस 89, तो ये मल्टीप्लाई करने में भी जिंदगी में मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी 99 प्लस 89 99 माइनस 89 करोगे तो चलो वैसे कर लो, राइट, इनटू व्हाट 10, ये हो गया, राइट। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 100 प्लस 100, ये मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा मनूस, वैल्यू 89 इंटू 99, 99 से 81, 100 माइनस एक भी कर सकते थे वैसे तो, है ना। चलो कोई नहीं, वैसे कर लिया तो 100 माइनस एक कर लेते, फिर 100 माइनस 99 कर लेते। सो एनीवेज 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 8 इज व्हाट, करने का मन नहीं कर रहा है, 72 80 801 801, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मेरा हाथ तंग है प्लीज,
I am prone to mistakes. I might have made some mistake already. We just never know. ठीक करा है ये 99 square minus 89 square. 9 9 is 81, 8 ऊपर 9 8 is 72, 80. It seems correct. So what is this? 100 into 8810. गलती तो नहीं करी है, चेक कर लो. काफी बड़ा नंबर आ गया ये. This is 10. This is 99 square minus 89 square. And 9 8 is 72, 80. This is क्या कर रहे हो? देख रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो. दिमाग खुट्टल हो गया ना बिल्कुल. सब कुछ कर लिया और एंड में ये लग रहा है मल्टीप्लिकेशन है. When it is addition, it is seeming to be multiplication. This is what happens in exam. I'm just feeling that this is 100. So 188 हो गया है तो सिंपली है ना, सर फोड़ने का मन करेगा. क्या कर रहे हैं जी? 18800 हो गया ये, इंटू 100 तो कर ही रहे हैं, तो 188. So this is 100 plus 18800. This becomes 18900. देख रहे हो, मतलब 99 plus 89 is 99 into 89 करने का मन कर रहा है जी. Right, so I hope there is no mistake which has been done. Right, so this is your answer. ठीक है, so again this is I would say a medium question. It's not a difficult question. All you have to do is you have to apply your some you have to write. You have to apply your pen on paper. You have to write. So लिखोगे तो ये हो ही जाएगा. You can't skip such kind of questions in exam. ठीक है जी, कहानी चल रही है. Let's move on to the next question. है ना जी, ये आ गया. The number of 4-digit numbers, 4-digit integers in closed interval 2022 to 4482. हिंदी में काउंटिंग आती नहीं तो आधे लोग नहीं पढ़ गए. 2022 से 4482 के बीच में 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, formed by using digits 0 2 3 4 6 7. तो you have been given only 6 digits, सिर्फ 6 डिजिट्स दिए हैं, राइट. और उन डिजिट्स को यूज कर नंबर्स बनाने हैं, बट वो भी इस इंटरवल के बीच में, है ना. तो मतलब we can try and think probably, you know, कि we start with 1 2 3 4. ये 4 प्लेसेस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं. इन 4 प्लेसेस पे जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस है ना, 0 यूनिट्स, टेंस, थाउजेंड्स, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस जो ये चल रही है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस है. दिस कैन बी ईदर 2 और 3 और 4 और 6 और 7. ठीक है जी, ये कहानी चल रही है. आगे चलते हैं जी. ये वाली जो प्लेस है, व्हाट कैन दिस बी, राइट. सो दिस प्लेस कैन बी, ऐसे एग्जाम में सोच रहे हैं, what this can be. Can this be 0? Yes, this can be 0. Can this be 1? 1 तो अलाउड ही नहीं है. 2 3 4 6 7 ये हो सकता है. ठीक है जी, ये भी अलाउड है. अच्छा जी, इस प्लेस की बात करो. ठीक है जी, कैन दिस प्लेस बी 0? It can be 0, but it cannot be 0 if there is 2. तो ऐसे सोच रहे होंगे ना, एग्जाम में सोच रहे हैं जी, तो 2 3 4 6 7 सब कुछ हो सकता है, कोई परेशानी नहीं. 2 अलाउड है, 0 नहीं हो सकता बस. पर यहाँ पर 0 तो है ही. 0 2 3 4 6 7 सब कुछ हो सकता है. 2 0 के बाद के सारे नंबर चाहिए, पर यहाँ पर 0 इज नॉट अलाउड. बट क्या 0 हमेशा ही अलाउड नहीं है? अगर यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ इस नंबर पे 3 आ गया तो 3 1 0 तो 0 तो हो सकता है. तो 0 इज अलाउड समटाइम्स, 0 इज नॉट अलाउड समटाइम्स. आई थिंक जब सोचोगे ऐसे समझ आ जाएगा कि you will have to make some cases in this, right? So you'll have to make some cases in this. तो शुरू हो जाते हैं. We can always make some cases कि जी हम शुरू करते हैं कि we start with 2 0. पहले यहीं से शुरू करते हैं कि 2 0 2 के बाद की बात करते हैं. यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, right? So what all is allowed here, right? So we have 2 is allowed here because 2 is included. It is closed bracket. It is closed bracket. So 2 is allowed.
2 इज अलाउड, 2 के बाद क्या अलाउड है जी? 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4, 6 और 7 अलाउड है, राइट? सो वी हैव 5 नंबर्स विच आर अलाउड इन दिस केस व्हेन यू हैव 2 0 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 0, अब 2 तो हो गया। अब यहाँ पे और क्या क्या अलाउड है? वी हैव 3 अलाउड हेयर, 4 अलाउड हेयर, 6 अलाउड हेयर, 7 अलाउड हेयर, 4 डिजिट्स अलाउड। यहाँ पे कितने अलाउड है? यहाँ पे 6 की 6, राइट? यहाँ पे ऑल अलाउड, राइट? है ना जी? तो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस व्हेन यू हैव 2 0, राइट? 1 is 2, जब 2 है तो हमें पता क्या करना है। बाकी नंबर्स में क्या होगा जी? 4 into 6, 24 केस ये आ गए, तो 5 ये थे और 24 ये थे, राइट? दैट्स हाउ इट इज, है ना? व्हाट इफ यू हैव गॉट, अब 2 और 2 0 का काम हो गया, राइट? वी हैव टेकन केयर ऑफ व्हेन देयर इज 0, राइट? नो, व्हाट ऑल प्लेस थिंग्स आर अलाउड हियर? 2 3 4 6 7 ये अलाउड है। फिर उसके बाद ये वाले डिजिट में क्या अलाउड है? ऑल। एक बार यहाँ पे 2 आ गया तो ऑल अलाउड, है ना? क्योंकि यहाँ पे 2 है। सो आई होप ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर अब हम इस डिजिट की बात कर रहे हैं और ये वाली डिजिट ये है और यहाँ पे क्या अलाउड है? ऑल अलाउड। तो ये कितने पॉसिबल हैं? अब यहाँ पे 0 की जगह 2 3 4 6 7 जब डिस्कस कर रहे हैं तो ऑल पॉसिबल डिजिट्स के लिए यहाँ पर सारे नंबर्स अलाउड है। 0 भी अलाउड है और 2 3 4 6 7 भी अलाउड है, राइट? सो यहाँ पे पॉसिबल डिजिट्स इज 5 into 6 into 6, राइट? तो कितना हो गया? 5 6 30, तो और 6 3 18, 180 नंबर ये वाले आ गए, राइट? तो एक केस बनाने की अपना फीलिंग आ जाएगी ना। तुम यहाँ से शुरू कर रहे थे, समझ आएगा। यहाँ से शुरू करने में कुछ समझ हो नहीं रहा बेसिकली, यहाँ पे 0 अलाउड है कि नहीं है, यहाँ पे 0 अलाउड है कि नहीं है, कुछ केसेस में, कुछ केसेस में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, राइट? आगे चलते हैं। व्हाट इफ वी हैव 3? व्हाट इफ वी हैव 3? 3 है तो जी घर की खेती है, ऑल आर अलाउड, ऑल डिजिट्स आर अलाउड हियर, ऑल डिजिट्स आर अलाउड हियर। द पॉसिबल केसेस आर 6 into 6 into 6, है ना? 216 हो गया, 6 6 36 into 6, 216 नंबर्स आ गए जो 3 से शुरू कर रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पे 4 पे। लेट्स मूव ऑन टू 4, है ना? अब उल्टा चलते हैं 4 पे। तो 4 में अभी 4 4 8 2 को बाद में लेंगे, पहले जीरो एम्बिग्युइटी वाले केसेस लेते हैं। क्या यहाँ 0 अलाउड है? हाँ जी है, 0 वाले सारे नंबर्स अलाउड होंगे। क्या यहाँ पे 2 अलाउड है? बिल्कुल जी है। 3 अलाउड है? बिल्कुल जी है। 4 की बात हम अलग से करेंगे, राइट? 4 वाले केस अलग है। तो 0 2 3 अलाउड है। जब 0 2 3 है तो ऑल नंबर्स आर अलाउड है, राइट? तो कितने केस हो गए? 3 3 into 6 into 6, राइट? राइट, है ना जी? तो कितना हो गया जी? 6 3 18, ये 6 6 36, 36 3 कितना होगा? 30 3 9 और 6 3 18, 90 और 18, 108 केस ये आ गए। अब आगे चलते हैं जी। अगर यहाँ पर 4 आ गया तो यहाँ क्या अलाउड है? अब यहाँ पे बोल रहे हैं जी 4 4 8 2 तक जाना है, तो विच मीन्स ऑल आर अलाउड। 7 इज ऑल्सो अलाउड। क्या 7 यहाँ पे अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, बिकॉज 82 तक की चेन है, ऑल आर अलाउड है, राइट? उसके बाद जी यहाँ पे भी ऑल आर अलाउड, बिकॉज तुम्हारे तुम्हारे तो अपर लिमिट इज 82 और 82 तो पॉसिबल ही नहीं नंबर से। तो यानी ये वाला नंबर इज नॉट पार्ट ऑफ द डिजिट्स विच कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस नंबर वाज पार्ट ऑफ द डिजिट्स बट विच कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस, बट नॉट दिस नंबर, राइट? बस यहाँ पे ऑल अलाउड तो कितना हो गया? 6 into 6 36, दैट्स व्हाट इज जी। व्हाट इफ द नेक्स्ट, कुछ नेक्स्ट है कि यहाँ पे 4 4 0 to 3 डिस्कस हो गया, राइट? 4 4 हो गया। कैन यू हैव 6 हियर? ऑब्वियसली यू कांट हैव 6 हियर बिकॉज़ अपर लिमिट इज स्टिल 4, सो देयर इज नो अदर केस। इसका सम कर देना, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू सम, राइट? तो आंसर देख लो कितना आ रहा है। तो आंसर इज 5 + 24। अब यहाँ मैं गलती करूंगा पक्के से नहीं, सब कुछ हो गया। कैलकुलेटर है नहीं, भगवान ने दिया नहीं, एडिशन में हाथ तंग है ना जी? ले लो, तो सम कर लो जी। लेट्स डू इट इन द ओल्ड फैशन मैनर। ये 29, या चलो 29 हो गया है और ये 36 है ना? तो ये 55 हो गया मेरे ख्याल से, इन दोनों को मिलाओगे तो 29 + 36 इज 55। फिर भी गलती ना हो जाए, देखो गलती वही गई थी, 55 बोल रहा था मैं, है ना? 65 था, 65 था, विच आई एम सेइंग इज 65 ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया? 288 हो गया मेरे ख्याल से ना। यस, आई थिंक नाउ वी कैन डू 288 + 216 + 65 इत्मीनान से जी, गलती ना हो जाए। 8 6 14, 14 और 5 19, एक ऊपर, है ना जी? 10 16, एक ऊपर, सो वी आर गेटिंग 569, राइट?
So between this range, the numbers which are possible from these digits are how many? The 569, right? तो ये मतलब I would rate this again as a medium to difficult question. It is not easy to think and make cases in exam. इतना patience नहीं होता है, right? ये समझना कि यहाँ पे ऐसे cases बनाने पड़ेंगे. थोड़े पंगे ले लिए एग्जामिनर ने, बीच का कुछ नंबर ले दिया, right? है ना जी? So this question was easy medium in section 1. Question number 6, this question I would say is medium, ये doable question है. This again is a medium difficult just because it is complex and it is of you know, it has involved some solving of complex equations. This again is a medium difficult question, कि strike करेगा नहीं करेगा तो मतलब doable भी है, ये तो easy medium है. तो ये 1 पक्के से करना था इस सेक्शन में, है ना जी? ये वाला भी अगेन मीडियम डिफिकल्ट है. दिस अलजेब्रा में ये वाला क्वेश्चन तो डुएबल है. 2 तो मतलब होने ही थे मिनिमम, कि 2 तो करने ही थे, 1 and 6, राइट? नाउ शोभित विल कंटिन्यू with the 8th question. तो फाइनली अगर आपने देखा तो देखो, लोग भैया ने बोला 2 क्वेश्चन तो वो करने ही थे, एक कैलकुलस का क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चंस तो 7 में से हम कर ही सकते थे, ठीक है? और ये जो 8th क्वेश्चन है ये भी देखो, मतलब बस ये रियलाइज करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, उसके बाद तो बहुत आसान है. हमें बोला हुआ है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड AB 1 है और AC 3 है और एंगल 90 डिग्री है. तो ये बोल रहे हैं BAC 90 डिग्री, तो ये इसको A ले लेते हैं और इसमें AB लेंथ 1 है तो एक लेंथ इसे 1 ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को 1,0 मान लेते हैं इस पॉइंट को, और B पॉइंट ले लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले पॉइंट्स ले सकते हो 0,3 ऐसे कुछ. तो ये आपका ABC ट्राइंगल हो गया, राइट? उसके बाद अब ये बोला है कि फॉर सर्कल ऑफ रेडियस r टचेस द साइड्स AB AC and also touches internally the circumcircle of the triangle ABC. now देखो circumcircle में एक बहुत बेसिक सी बात हम पढ़ते थे कि अगर एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कमसर्कल है, जो इन्हें ब्लू वाला सर्कल यहाँ बना रखा है, ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कल, इस राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कमसर्कल है. अगर ऐसा होता है तो आपको पता है क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो इससे सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है. जो सर्कम सर्कल का सेंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा. उसको कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 1/2, 3/2 बता सकते हैं काफी आसानी से. और ये एक और सर्कल है हमारा जो एक रेडियस r का सर्कल है जो AB और AC को टच कर रहा है, इन दोनों साइड्स को टच कर रहा है, और इस सर्कम सर्कल को भी इंटरनली टच कर रहा है. अब इंटरनली टच की कंडीशन देखो, एसेस तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि सर्कल कहाँ पे होगा, कि भाई इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को टच करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और इस सर्कल को भी टच करना है इंटरनली, ठीक है? मैं ऐसे कुछ सर्कल बना सकता हूँ, बट मैं कह रहा हूँ इतना जरूरी नहीं है इसे बनाना, ठीक है? नहीं भी बनाते तो हमें इंटरनल टचिंग की कंडीशन पता है बहुत आसानी से, कि दोनों सर्कल के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगा. आउटर सर्कल ऑब्वियसली यहाँ पे सर्कम सर्कल है क्योंकि ये सर्कल तो यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक है? तो आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो गया, आप नोटिस करो तो ये लेंथ कितनी थी, तो ये जो r ऑफ, इसको r1 बोल देता हूँ एक्जेक्टली, ये जो है √10/2, तो √r1 - r2 ऐसे कुछ करना है हमें. तो C1 C2 क्या होगा, एंड देन r1 √10/2 - r. और आपको पता है अगर एक सर्कल ऐसा है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, अगर एक सर्कल ऐसा है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसका जो सेंटर होता है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, r, r. ना आप सेकंड क्वाड्रेंट वगैरह में जाने का सोच सकते थे, बट ये तो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इन्वॉल्व करके ला रहे हैं, तो कहीं यहाँ पे ही होगा. तो बस अब C1 C2 आपको ये देखना है, जो दोनों का डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच का, r1 - r2 के बराबर होना चाहिए. तो r ही हमें सॉल्व करना है, और r के टर्म्स में पूरी कंडीशन आ जाएगी. जो डिस्टेंस है वो आप नोटिस करोगे, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r - 1/2 का स्क्वायर प्लस r - 3/2 का स्क्वायर. तो बेसिकली देखो ये वाली बात हमें याद आनी चाहिए, ठीक है? और ये तीसरी वाली बात हमें याद आनी चाहिए. एक बात ये है, दूसरी बात ये है, ठीक है? और ये बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद तो देखो कुछ है नहीं, मतलब ये तो बहुत बेसिक सी चीजें, हमने कम से कम 10-15 क्वेश्चन इस पर डिस्कस करे होंगे ऑलरेडी. तो √10/2 - r, और फिर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे. तो देखो अब तो क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं, ठीक है? -r प्लस r² प्लस 9/4 माइनस 3r इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है, 10/4 प्लस r² माइनस r√10. और जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1/4 9/4 10/4 से कैंसिल हो जाएगा, एक r² से भी कैंसिल हो जाएगा. तो r² की वैल्यू जो है 4r माइनस r√10 के बराबर आ जाएगी.
तो r को कॉमन लोगे या तो r 0 है या फिर r की वैल्यू आप देखोगे तो 4 माइनस रूट 10 हो जाएगी। तो यार देखो मतलब अगेन कैलकुलेशंस तो ठीक है आप कर ही लोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 4 माइनस रूट 10 की वैल्यू निकालने में बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं होगा। रूट 10 शायद आपको पता ही है कि 3.16 कुछ होता है हमारे पास, तो 3.16 है तो 4 माइनस 3.16 कभी 0.84 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0.84 है। देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन पता नहीं होने की वजह से मैं इस क्वेश्चन को मीडियम लेवल बोल सकता हूँ, क्योंकि इस कंडीशन के बिना सॉल्व करने में तो आप इतना टाइम लगा दोगे इस क्वेश्चन में कि इट विल नॉट बी सो सेंसिबल बात। मतलब वो डायग्राम बनाना भी चैलेंज हो जाता है, वो अलग से बनाना पड़ेगा कि ये देख लोगे कि भाई C1 C2 जो सेंटर्स हैं ये R1 है ये R2 है, तो ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2 के बराबर है। ये सब सोचना पेपर के दौरान मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लेवल पे। तो बट कोई बात नहीं, 4 माइनस 0.84 आ गया। और डोंट वरी 0.84 0.86 जनरली जेई विल नॉट वरी विद दिस। अगर एग्जैक्ट डेसिमल प्लेस नहीं आ रहा होता तो जनरली गिव अ रेंज ऑफ द आंसर्स। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 1 खत्म होता है। 8 क्वेश्चन हुए, तो 8 में से आई थिंक जैसे भैया ने डिस्कस किया लार्जली हम लोगों के पास करीब करीब हम 3 क्वेश्चंस तो पक्का से कर सकते थे, और उसके बाद अगर हम देखते तो वी कुड हैव आल्सो सॉल्व मतलब जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है उसमें से अगर 2 क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो मतलब उसमें से 2 तो क्लियरली भैया कह रहे थे कि नहीं सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है, रिमेनिंग 3 बचते हैं, तो उसमें से अगर हम 2 भी सॉल्व कर लेते तो 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, इट्स अ वेरी बिग नंबर। 8 में से 5 क्वेश्चन मैथ में सॉल्व कर लिया तो टॉप 100 में रैंक आती है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, आई होप यू ट्राइड, यू मस्ट हैव ट्राइड डूइंग थिंग्स एंड चीजें हो गई। नेक्स्ट मोस्ट ड्रेडेड सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है एमसीक्यू। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस के, और हर एक क्वेश्चन में +4 और -2 भी था। तो इसका मतलब जो आंसर नहीं निकलता उसको हम मार्क नहीं करेंगे, राइट। पार्शियल मार्किंग के साथ था, तो ये भी स्ट्रेस नहीं है कि भाई कोई 1-2 निकाल लिए तो फिर कोई बात नहीं है, पूरे 4 नंबर के लिए ऐसे बहुत स्ट्रेस नहीं क्रिएट करेंगे हम लोग। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था 1 to AE इंटीग्रेशन ऑफ log x raised to power half एंड समथिंग समथिंग समथिंग। यहाँ पे कुछ हमारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, घटिया सा इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन में ये भी नहीं कि इंटीग्रेट करो, वो कह रहे हैं ए की वैल्यू सॉल्व करो। भाई ए की वैल्यू यहाँ पे कहीं आ रही है इस एक्सप्रेशन में, इस ए की वैल्यू के लिए कुछ सॉल्व करना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो कहता है कि ए सेटिस्फाई करता है नहीं करता, ऐसे कुछ है, और ए की कुछ रेंज उन्होंने दे रखी है। चलो लेट्स सी, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 to E, अब ये इंटीग्रेट हो सकता है क्या। अब आपने ये सोचा, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये रूट लॉग एक्स है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे x है, और इधर a माइनस में हम देख रहे हैं तो log ऑफ x रेज टू द पावर 3/2 कुछ हमें नजर आ रहा है ना जी। तो ये इंटीग्रेशन है। तो अब ये जब इंटीग्रेशन हमें नजर आ रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो टर्म है वो log x रेज टू पावर 3/2 के डेरिवेटिव में आएगा। तो अगर आप एक सेकंड के लिए log x रेज टू पावर 3/2 को t मान लेते हो, तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव 3/2 log ऑफ x रेज टू पावर 1/2 इंटू 1/x dx। और देखो 1/x भी यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इसको जैसे ही आपने t माना, ये dt हो गया, तो आपका ये वाला जो पूरा टर्म है वो 2/3 dt हो गया, 2/3 dt डिवाइडेड बाय a माइनस टी का स्क्वायर। ऐसा कुछ इंटीग्रेशन करना है। अब लिमिट्स के बारे में सोचना पड़ेगा भाई, लिमिट्स कैसे सोचते हैं। अब भाई सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, x की वैल्यू को 1 डालेंगे, जब x की वैल्यू को 1 डालेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो लिमिट हो गई 0। और जब x की वैल्यू को e डालेंगे तो log x तो 1 ही हो जाएगा, 1/3/2 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पास इंटीग्रेशन बच गया, और इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1। अब ये इंटीग्रेट होना तो बहुत आसान है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या है, 2/3 अपॉन 1/a माइनस टी, -1/a माइनस टी, और t का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। लिमिट 0 to 1, ये वहां को 1 दे रखा है, विच इज 2/3 1 अपॉन a माइनस टी माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a। ये वैल्यू हमें 1 दे रखी है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो a माइनस 1 आ जाएगा ऊपर, तो 2 आ जाएगा। इनफैक्ट दैट विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 3a, which will basically become 3a square minus 3a minus 2 is equal to 0.
ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी ए में, तो यहाँ से ये बात फीलिंग आ सकती है नो ए सैटिस्फाई द इक्वेशन। ए की वैल्यू नहीं पूछ रहे, इंटरेस्टिंग बात है, कह रहे हैं बस ए की वैल्यू देखो, कुछ अच्छी आ भी नहीं रही है, शायद आप फैक्टराइज वगैरह भी नहीं कर पाओगे यहाँ पे। व्हाट यू विल रियलाइज इज कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 3 plus minus under the root b square which is 9 plus 6 into 4 24 divided by 6 ऐसे कुछ हो जाएगा, which is 1 by 2 plus minus root of 33 divided by 6 ऐसे कुछ हमारे पास आ जाएगा। नो ए सैटिस्फाई द अबव इक्वेशन गलत हो गया। एन इंटीजर ए सैटिस्फाई द अबव इक्वेशन, कहाँ से इरेशनल नंबर आ रहा है, कोई इंटीजर तो नहीं आ रहा। इरेशनल नंबर हाँ बिल्कुल, मोर देन 1 ए सैटिस्फाई द अबव इक्वेशन यस। अब देखो एक छोटी सी बात यहाँ पे जरूर थी कि ए की जो रेंज थी उन्हें माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 1 टू इन्फिनिटी, ये एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं साले मोर देन 1 ए के लिए। तो अगर ये देखते हैं तो ये वाला जो टर्म है देखो, ये तो हाफ और ये रूट 33/6, रूट 33 ऑलमोस्ट रूट 36 के पास ही है, तो ऑलमोस्ट 1 से हल्का सा बड़ा या छोटा है। तो अगर इसमें ऑलमोस्ट 1 मानता हूँ, तो अगर मैं इसे +1 मानता तो 1/2 + 1 3/2 हो जाता, विच फॉल्स इन द रेंज। और अगर मैं इसे -1 कर लूँ तो 1/2 -1 -1/2 which again also falls in the range, दोनों है, तो more than 1 obviously satisfy this equation। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी और डी हो गया था। तो मतलब देखो ये स्टेप सब्स्टिट्यूशन में दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी शुड बी वेरी वेरी ऑब्वियस। क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता है इंटीग्रेट होना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके किया जा सकता था। log x को पहले t ले लेते, 1/x देख लेते, t लेते तो t raised by 3/2 और रूट t दिखता तो वहां से देख लेते आप, वो भी पॉसिबिलिटी थी। तो ये एक स्टेप है हमारा। उसके बाद ये इंटीग्रेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये वैल्यूज लिमिट डालना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनाना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस एग्जाम में हम कोशिश ये करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार हमें सोचते हैं कि बस हमारा आंसर कैसे आ जाएगा तुक्का मार के, वो अगर आप नहीं करोगे तो लार्जली यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। एंड एक बार वैसे ये डायरेक्शन दिख गई तो आपने पकड़ ली, तो खुद पता चल ही जाएगा कि आप सही रास्ते पे हो, तो आगे तो हम लोग चीजों को मैनेज कर ही लेते हैं। आई थिंक दैट शुड बी फेयर इनफ। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज फाइन आलोक भैया, so you can take over with the next question. Right, so mic was mute. Anyways, so this is the next question of this section. तो पढ़ते हैं इसको। Let A1, A2, A3 be an arithmetic progression। दोबारा EP टाइप का क्वेश्चन आ गया AP GPHP पे, where A1 is equal to 7 and common difference is given as 8. Let T1, T2, T3 be such that T1 is equal to 3 and Tn plus 1 minus Tn is equal to An. अच्छा जी, so you have been given that Tn plus 1 is equal to Tn plus An। अच्छा, तो जैसी कहानी चल रही है A1, A2, A3, A4 till you have An, and then you have T1, T2, T3, T4 till Tn, and then Tn plus 1 is sum of these two, right? Similarly Tn minus n की बात करें, so that will be equal to Tn minus 1 plus An minus 1, right? So this term will be sum of, yeah, this term will be sum of this term that is given to us, right? अच्छा, ऐसा कुछ दे रखा है, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, let's just try and read what is happening further. So then which of the following are true? T20 निकालना है। अच्छा जी, सिग्मा टीके की बात कर रहे हैं। ऑल राइट, सो टी का एक्सप्रेशन निकालना है, राइट? सो यू टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ टी। just
There was some issue, just wait a minute. All right, so this is what you have to figure out. So we have to find the value of T20 T30, है ना. तो देखो अब एक थॉट जो एकदम से शायद दिमाग में आया कि सिग्मा दिख रहा है कुछ कुछ, तो शायद अगर हम सिग्मा कर लें इसका तो ये काम हो जाए. This is what you've done in the class. You have difference of consecutive terms already, right? है ना. और अगर हम सिग्मा करें लेट्स से where n goes from 1 to n, तो यहाँ पे भी सिग्मा आ जाएगा. Tn+1 minus Tn is equal to n रहेगा, तो दोनों साइड सिग्मा कर रहे हैं. तो दोनों साइड सिग्मा लगाएं, फिर n goes from 1 to n. N goes from 1 to n. That's how it is. So what do? This is straight out of class copy. You put the upper limit in term-wise higher term, and you put lower limit in term-wise lower term. Right? We can do it like a Lehman also. वैसे भी कर दूंगा मैं. Right? So what do you get? You get Tn+1 minus T1. That's what it is. And what is this? This is sigma of A1. Should see this is the sum of an AP. A1 plus A2 plus A3 plus AN. Right? तो ये term क्या हो गया? It is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Right? So sum of n terms of an AP. That's what this is. Right? So that's what this is. That's how it is. And this term we have already got. So this term is this. Right? ये एग्जाम में नहीं समझ आएगा तो बेसिक से क्या जा रहा है कि सिग्मा ले रहे हैं हम दोनों का. कि what they're trying to say is that T1 T2 minus T1, right? T2 minus T1 is A1. ये तो है. आगे चलो. T3 minus T2 is A2, है ना. T4 minus T3 is A3. कर लो, कितना टाइम लगेगा. Then we talk about T, n minus 1 minus Tn minus 2, it is equal to An minus 2. Tn minus 2 minus Tn minus 1, it is equal to An minus 1. Right. Right. Then we talk about T of no ये ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है मैंने. यहाँ पे n आएगा. Tn minus 1 से बढ़ाएंगे ना, हम बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं हम. इसको बढ़ाएंगे. Tn+1 minus Tn will be equal to An. That's how it is. तो हम ये एक करके बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी एक करके बढ़ाते जा रहे हैं. ये तो रखा है. इसको सम करोगे तो क्या फीलिंग आ रही है कि T2 will cancel out with T2, T3 will cancel out with T3, T4 will cancel out with something here. तो हर ऊपर का टर्म नीचे के राइट वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है. हर ऊपर का टर्म राइट वाले नीचे वाले किसी टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है. तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म को यहाँ कुछ कैंसिल आउट कर रहा होगा. फिर ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है. दैट्स हाउ इट इज. सो what are we left with? Tn+1 minus T1 and that value is sigma n, where n goes from 1 to n. और sigma a के लिख दो. That also can be written sigma a के लिख दो, ये n लिख दो, does not matter. That's how it is. तो ये वरना क्लास कॉपी का क्वेश्चन है स्ट्रेट. इट इज स्ट्रेट आउट ऑफ क्लास. वी हैव डन मल्टीपल क्वेश्चंस लाइक दिस. की अपर लिमिट goes in term wise higher term, this is term wise higher term, and lower limit goes in term wise lower term. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है. इसको सम कर लो. अब इसको सम कर लेते हैं. सो वी हैव गॉट द सेम एक्सप्रेशन. Tn+1 minus T1 is equal to sigma ak. I'll just write it here. So this implies Tn+1 minus, or it is equal to T1 plus this value, right? It is n by 2. What is the value of a? A1. यहाँ पे A1 आ जाएगा ना. n by 2 into 2 of A1 plus n minus 1 terms into D, common difference. तो ये देख लेते हैं अभी क्या है यहाँ पर, है ना. यहाँ पे A1 आ जाएगा. A1 के लिए देखिए 7. A1 is given as 7. So this implies Tn+1 is T1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3. It is 3 plus, right, n is a general कहानी. So it is n by 2 into 2 into 7 plus n minus 1 into common difference has been given. Yes, the common difference has been given. That value is given as 8. Right. Right. है ना जी. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो ये कितना हो गया? राइट. सो n स्क्वायर का टर्म आ जाएगा इसमें. 2 अंदर से आ जाएगा तो 3 plus n into 7 plus n minus 1 into 4. 4n minus 4 है तो 4n plus 3 हो गया. So this is equal to 3 plus n into 4n minus 4. तो ये 4n plus 3 हो गया.
ये Tn आ गया हमारे पास, राइट। स्टैंडर्ड सी कहानी है ना जी। दिस इज T ऑफ n+1, दिस व्हाट वी फिगर आउट। अब देख लेते हैं, है ना। तो T20 की बात हो रही है। So Tn+1 is what? 3 plus 4n square plus 3n. 3n? Yeah. है ना, और this is 4n square plus 3n plus 3. ऐसे लिख लो। So now you want to talk about the value of what? T20. T20 निकाल लेते हैं, मतलब ये doable क्वेश्चन एग्जाम में, ये नहीं छोड़ सकते क्वेश्चन एग्जाम में। You can't skip this question in exam. But you skip this question and this is not a correct approach. इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, right? So I'll just put this a bit on the left. Right. Energy. So what do we have? We have got the value of T20. So T20 will be, this is Tn+1. So it is 4 into 19 का square plus what? 3 into 19 plus 3. ठीक है जी, तो ये निकालना पड़ेगा हमें, राइट। इनफैक्ट ठीक है, चलो मल्टीप्लाई तो करने पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली 19 को दो बार ये वाला टर्म अप्लाई करना बेटर होता, ऐसे लिखना शायद सॉल्व करना आसान होगा। और दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 19 इंटू 4 इंटू 19 प्लस 3। दिस माइट बी मोर इजी। बहुत अजीब टर्म्स आ रहे हैं, देख लो जो जैसे मर्जी सॉल्व करें, मतलब somebody might be comfortable like this, somebody might be comfortable like that, तो जैसे मर्जी कर लो। 19 का स्क्वायर कितना हो गया ये, है ना जी, 20 माइनस 1 का स्क्वायर, और 19 इंटू 19 कर लो, 9 9 81, 9 1 से 9, and then what, 17, and then we put 19 here, so 1 6 361 हो गया ना जी ये, 361। so 4 into 361 plus this is 57 हो जाएगा, 3 times 27 and then plus 3 60. So this wale becomes equal to 3 4 1s are 4 4 6 are 24, then 2 ऊपर 4 3 are 12, 14 plus 60. All right, this becomes equal to 4 and 1504. ठीक है जी। so T20 की जो वैल्यू आ रही है, it's coming out to be 1504. this is wrong, this is not the value which we are thinking। कहीं गलती ना करिए, चेक करना पड़ेगा। I don't think there's any mistake which seems to be there। 9 and 81, 8 and 17, and I think this is done। ठीक है जी, आगे चलते हैं। then next is what? सिग्मा कर रहे हैं, पहले T30 निकाल लेते हैं, that will make more sense। so we can talk about T30। no, ये गंद काम है। 29 square plus what? 3 into 29 plus 3, or you do it like this, है ना, शायद ये अप्लाई करना ज्यादा आसान हो, पर एग्जाम में स्ट्राइक करेगा नहीं, वो स्क्वायर करके ही करोगे, कि शायद हम बच जाएं एक वाहियात कैलकुलेशन से। पहले ये काम कर लो, इस बार ऐसे करके देख लेते हैं। तो 3 प्लस वॉट 29 इंटू वॉट, तो 4 इंटू 4 ये 12 हो गया, 120 में से 4 और 126 हो गया ना, 126 116, 4 9 36, तीनों पर 4 दूनी 8 11 प्लस 3, तो 119। So 119 into 29 is what we are supposed to do। 9 9 is 81, 9 1s are 9, and then 10 1 ऊपर, 9 1s are 9, 10 1008 into what, 2 9s are 18, 1 ऊपर again, 2 1s are 2 3, 2 1s are 2 2, that's it। so 8 8 3 3, that's what this is। so 3 plus 3 3 8 8। इसमें कैलकुलेशन में शायद कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, कुछ ना कुछ गलती करी होगी, हो सकता है। 1008 जो है ना, वहाँ पे वो गलत है। 9 8 70, 9 9 81, मैंने क्या कर दिया, 9 9 से 81 है, देख रहे हो जी। 9 से 9, and then तो बिल्कुल ही कुछ भी कर दिया। 9 9 से 81, 8 ऊपर, 9 1 से 9 17,
and then 1 ऊपर and then the 9 is 9 107 अब ठीक करा है ना जी 2 9 से 18 1 ऊपर 2 1 से 2 3 I think this is fine 8 5 1 4 3 4 5 8 is what we are getting right अभी भी लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया इस एडिशन में 3 4 5 1 है right so this is 3 4 5 4 कुछ और तो नहीं गड़बड़ करी वो देख लेते हैं I think yeah तो C is working out थे बस कैलकुलेशन वाली कहानी चल रही है इसमें और सिग्मा टी के निकालना है जिंदगी में सिग्मा टी के निकालते हैं you have to find sigma tk where go key goes from 1 to 20 और काम नहीं ना उनकी जिंदगी हमें क्वेश्चन दे दिया बस रैंडम so t के tn plus 1 की वैल्यू है हमारे पास right so this is we have got tn plus 1 is what we have got so we have sigma tn plus 1 की बात कर लेते हैं right और we can हाँ ऐसे लिखना बेटर है where हमें चाहिए sigma tk where k goes from 1 to 20 right sigma tk where k goes from 1 to 20 that's what you are looking for ठीक है जी तो यहाँ पर अब शुरू हो जाते हैं तो सिग्मा टी एन प्लस 1 निकाल लेते हैं वेयर एन गोज फ्रॉम क्या बोलोगे 0 से लेकर 19 दैट शुड बी फाइन राइट तो टी अगर एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे t1 आ जाएगा विच इज द हियर राइट और n इक्वल टू 19 पुट करेंगे तो यहाँ पे t20 आ जाएगा which is what you want this is what you are which is required right so this is equal to sigma of I'll simply write 4 times of sigma of n square n goes from 0 to 19 0 is not required 0 is useless 3 times of sigma of n goes from 0 to 19 plus 3 times of sigma of 1 you can write where n goes from 0 to 19 right that's how it is or you can write this as 1 to the power n ऐसे भी लिख सकते हो कि हर बार 1 ऐड हो रहा है something like this so when we multiply this so this is sum of first 19 terms you know n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 this is the first thing so this where n is equal to 19 so you will put 19 here energy or plus what 3 times of n into n plus 1 by 2 plus what 3 times of this is simply 19 so not 19 so you'll add 19 minus 0 plus 1 the final term upper limit minus lower limit right plus 1 so these are 20 terms 20 terms yes बिल्कुल ठीक है जी तो आगे चलते हैं so we simply write we have to find this value 4 into 19 into 20 into what 38 39 by 6 plus 3 into 19 into what 20 by 3 by 2 plus 60 अभी मनूस वैल्यू से इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा जिंदगी में और कोई काम नहीं है 2 3s are 6 3 1s are 3 fortunately we are able to cut some of them out है ना तो ये तो हो गया 570 plus 60 all you're left with is this so this is 260 into 38 0 8 6 are 48 8 4 ऊपर 8 2 are 16 20 0 3 6 are 18 1 ऊपर 3 2 are 6 7 0 8 8 9 राइट ना सर कितना हो गया 9880 plus 570 plus or we can write 630 I hope I've not done any mistake in this 14 15 1 all right so it is 10510 एक बार चेक कर लेते हैं हमने कुछ गलती ना करी हो तो ठीक लग रहा है सब कुछ 0 से 19 0 से 19 ठीक है राइट सो दिस वैल्यू इज गिवन एज व्हाट अब यहाँ आंसर आ जाए तो जो आंखें चमकती हैं एकदम
भैया आंसर आ गया है, राइट. सो देन वी हैव टू डू दिस 1 to 30. मतलब ये मनूस काम है बेसिकली. तो रैंडम तेल निकाल रहे हैं एग्जाम में महाराज हमारे कि जी करो चलो, ईगो सेटिस्फाई करो जी, के गोस फ्रॉम 1 to 30. बट यू कांट स्किप दिस क्वेश्चन. मतलब इरिटेशन हो रही है कि क्यों करा रहे हैं काम, तो कर रहे हैं जी, क्या करें. 1 to 30. So I'm writing this as sigma of t n plus 1 where n goes from 0 to 29 हो जाएगा ना. Yes. So this is sigma, क्या था, sigma of 4n square plus what, 3n plus what, 3. Just for the sake of writing, I'm writing it. So this is equal to 4 times of sigma n square where n goes from 0 to 29 plus 3 times of sigma n where n goes from 0 to 29 plus 3. Right, so this value will come out to be 4 times of n into n plus 1 into 2n will be 58 plus 159 by 6 plus 3 times of n into n plus 1 by 2 plus 3. All right, this is what, 6 1 is 6, 6 5 is 30, and then so you have to multiply and you get the answer. I hope यहाँ मैंने directly कर दिया, तो 2n is 58 plus 159. It seems to be fine. है ना. तो 30 पंजे 3 into 5 is what, 50, 15 150 हो गए ना. तो ये 4 5 9 से 45, 4 ऊपर 5 2 से 10, 145 into this value is 6 4 से 24, 240 में से 4 उड़ा दो, 236. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जिंदगी मजाक चल रहा है. This is 90, this is 87 into 15 plus 3. So this is what you are supposed to do. कॉमन वॉमन आ जाए जिंदगी में तो हम शायद कुछ आसान हो जाए हमारी लाइफ. It doesn't seem to be happening. Right, so you multiply them in exam. गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का घूंट दबा के पी रहे हो, क्या करें. कैसा मनुष्य क्वेश्चन दिया है, 5 6 30 है ना, 3 गलती हो जाएगी, 5 3 15 18, अलर्ट रहना है. 5 दूनी 10 11, 4 6 24. हिंदी में काउंटिंग आती नहीं, क्या करें, है ना जी. 4 3 12 14, एक ऊपर हो गया, और 4 दूनी 8 9. अब लग रहा है कर रहे हैं कुछ, है ना. बचपन की यादें मल्टीप्लिकेशन की ताजा हो रही हैं. एक ऊपर 6 4 10 12, एक ऊपर 10 14, एक ऊपर 3 4 2 2 0. आई एम रियली नॉट श्योर इफ आई हैव डन इट करेक्टली. आंसर मैच नहीं करेगा तो और पड़ जाएंगे. 15 इंटू 7, राइट. 87 into 15, 5 7 are 35, 3 ऊपर 5 8 are 40, 43, 7 8 5 0 1 12 13 1305 plus 3. तो 1308 ऐड कर दें इसमें, 34,220 में, और 3 है तो 8 2 5 5 3, राइट. 35,528. I hope I might not have done the mistake. 35,610. n into n plus 1 into 2n plus 1. 58 plus 1 59. 6 5s are 30, and this seems to be fine. This also seems to be fine. This multiplication I've done in a hurry. 3 5 3 are 15 18, 1 upper, 5 2 are 10 11, and then we talk about 24 2, 4 3 are 12 14, 1 upper, 4 2 are 8 9. This also seems to be fine. Into 36 0 12 11 12. And then we have 14 1 3 4 2 2 0. This seems to be correct. And then we talk about this. 15 5 is 75 plus 30 is 105 5 10 ऊपर 120 130. Right. कहीं तो गलती करी है, because the answer is not matching. Well, answer is also not matching, but
The answer is not same as what it was coming when I solved earlier. तो ये चेक कर लेंगे, बट द आंसर इज स्टिल नॉट मैचिंग. मतलब जो करेक्ट आंसर आएगा वो मतलब आई थिंक इट इज 615, बट वी कैन चेक इट. मतलब so the answer which is there is, मतलब this is still incorrect. I think it was 615 if I remember correctly. देख लेंगे अभी. अभी it doesn't make sense to waste time on this. And so the idea is, देखो अभी क्वेश्चन मतलब लेंदी क्वेश्चन हो गया रैंडमली. पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि टीएन कैसे निकलेगा. तो ये मतलब अगेन आई विल रेट दिस एज अ मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले तो वो सिग्मा कंजर्वेटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं, अपर लिमिट लगानी है, वो लगाकर ये एक्सप्रेशन आकर ये T90 20 T30 निकालना, मतलब it's a lengthy question. That's why I'm calling it as a medium to difficult question. Medium question probably, but because of the length of the question, it becomes medium-ish difficult question, right? So Shobhit, I will continue. ओके, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था टॉर्चर ही था. मतलब ऐसे इतनी कैलकुलेशंस कराने को मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, इतनी कैलकुलेशंस करने का. टॉर्चर टू द पार्ट टॉर्चर था. टॉर्चर थोड़ी था. तो एग्जाम में क्या चेक कर रहे हैं. वो कहानी है. बट पेपर में 1 नंबर मिल रहा है तो ठीक है, ले लेते हैं. अगर वैसे तो मैं कहूँगा कैलकुलेशन इतनी ज्यादा मुश्किल दिख रही है तो हमें उस पॉइंट पे लगना चाहिए कि चल छोड़ के आगे चलते हैं, तो वापस आके देख लेंगे. बट ये है कि आसान था तो सॉल्वेबल था, बस वही है, फंस जाते हैं बहुत बार. ट्रैप था बेसिकली ना. यू कांट गेट अवे आल्सो, कि हो रहा है तो कर तो लो कम से कम. हाँ, एक तो हो रहा है, इसे तो करना है. बड़ी प्रॉब्लम. बट चलो कोई नहीं, लेट्स मूव ऑन. इस टॉर्चर के बाद एक बार टॉर्चर टू द पार्ट टॉर्चर एक और करते हैं. ये क्वेश्चन था, लेट P1 एंड P2 बी टू प्लेन्स गिवन बाय दीज. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. 2 प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, हम खुश हैं. फिर अब बोल रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रेट लाइन कैन बी एज ऑफ सम टेट्राहेड्रॉन whose two faces lie on P1 and P2. टेट्राहेड्रॉन वर्ड सुन के वैसे ही मन करता है क्वेश्चन छोड़ दे. और यहाँ पे तो उल्टा ये दे रखा है कि भाई कि उसके दो फेसेस पता है टेट्राहेड्रॉन के. तो मैंने जस्ट तुमने बनाया होगा ऐसा ही कुछ कि एक टेट्राहेड्रॉन बनाया, उसका एक फेस पता है और कोई दूसरा फेस पता है. ठीक है, मान लेते हैं जो ये ऊपर दिख रहा है वो P2 है और इधर पीछे वाला जो फेस P1 है. ठीक है, दैट्स ओके. अब ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सी लाइन कैन बी एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रॉन. अच्छी बात है जी. देखो एक तो बात पक्की है कि LOI लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 विल बी एन एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन. एक बात पक्की है. ठीक है, ये AB वाली जो एज. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो BD BC AD AC ऑलमोस्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये C पॉइंट कहाँ पे लेते हो, D पॉइंट कहाँ पे लेते हो उस प्लेन में, वो तो आपकी चॉइस है लार्जली. ये बात पक्की है इसमें. देखो AD और AC और BD और BC, now they lie either in plane 1 और plane 2. प्लेन 1 या प्लेन 2 में से एक प्लेन में लाई करना पड़ेगा, ये बात पक्की है. ये जो लाई करने वाली पैरेलल लाइन ऐसी भी हो सकती है, बट विल नॉट बी एनी साइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन. और ये तो चलो छोड़ो, अब CD लाइन एक और बची है यहाँ पे. अब इस CD लाइन में क्या कहानी है, अब इस CD लाइन में क्या कहानी है अगर हम देख रहे थे तो वो intersects the plane 1 and 2 at two different points basically. Now different बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि CD लाइन ले जाए तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन आएगा, बट दैट वुड नॉट
ये एक सा फंडा था यहाँ पे। नो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि आप वो इस तरीके से सॉल्व। बच्चों ने लगाया कि एलओआई ढूंढने की कोशिश करी, लाइन तो मिल जाए, क्योंकि एलओआई ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि हम एक वेक्टर निकाल लेते हैं कि लाइन उसके पैरेलल किसके, n1 क्रॉस n2 वेक्टर के, और n1 क्रॉस n2 वेक्टर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप 10 15 12 -2 5 4। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो आई कैप में 60 -60 0 आ जाएगा। अच्छा फील हो रहा है। माइनस जे कैप में हम देखेंगे तो आ रहा है 40 + 24 64, और प्लस के कैप में जब हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 50 + 30 80। विच इज अगेन, अगर आप देखोगे तो बी वेक्टर को आप थोड़ा आसान वेक्टर भी चूज कर सकते हो यहाँ पे, रादर देन दिस कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर। क्या आसान चूज कर सकते हो आप बी वेक्टर को, -4 जे कैप 16 से डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर चूज करना है, +5 के कैप, ऐसा कुछ आप मान सकते हो। और एक पॉइंट देखना होता है। पॉइंट देखने के लिए यहाँ पे आप मान लो z को 0 डाल दो, इस प्लेन में z को 0 डालोगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 10x, एक्चुअली में 2x + 3y = 12, ऐसे कुछ आ गया। और दूसरी में -2x + 5y = 20। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो y की वैल्यू 4 आ गई, और x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू 0 आ गई। वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। और ना जी, तो बस यहाँ से फिर 0 0 4 एक पॉइंट आ जाएगा, 0 4 0। तो इस लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो z x - 0, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है हमारी, उसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है x - 0 अपॉन समथिंग = y - 4 अपॉन समथिंग = z - 0 अपॉन समथिंग। एंड देन ये समथिंग जो है ये हमने देख लिया था कि आई कैप वाला टर्म तो 0 था, 0 आई कैप -4 जे कैप + 5 के कैप। इंटरेस्टिंग बात है, इनमें से किसी के डिनोमिनेटर में भी ये डायरेक्शन रेशियोज आपको नहीं दिखाई दे रहे। 0 -4 5, ये 4 5 4 कुछ दिखाई दिया था बट कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ 5 दिखाई दिया था बट 0 आ गया। तो एलओआई तो इनमें से कोई सी भी नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई ये तो चलो हम नहीं कर पा रहे हैं। अब ए बी की लाइन तो एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये जो लाइन आप देखो, अब हम ये सोचेंगे कि ये लाइन इट कैन बी आइदर दिस और दिस। तो इसके लिए ना आप देखो हम क्या कोशिश करते हैं, इसके लिए हमने एक नया रूल बनाया कि ये इफ एल, हम क्या करते हैं, इस लाइन पे कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, इस लाइन पे कोई पॉइंट लेता हूँ, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट लूँ तो हो जाएगा 1, 1, 1 + 5 लैम्डा। इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट लिया जाए, राइट। अब वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट P1 और P2 से कहाँ, ये जो लाइन है P1 P2 से कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये निकाल लेते हैं। क्योंकि या तो ये है कि दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, या फिर ये है कि ये पूरी लाई करनी चाहिए। लाई करेगी तो 4 और लैम्डा ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, और अगर दो डिफरेंट पॉइंट पर सेट कर रही है तो अलग अलग प्लेन के लिए अलग अलग पॉइंट आ जाना चाहिए। तो जब आप P1 प्लेन में इक्वेशन को डालोगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 + 15 10 + 15 + 12 × 12 + 60 लैम्डा -60 = 0। This is what we'll get. I hope so, है ना। एंड देन और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो उस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 60 - 25 35 - 12 23 23/60। आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अलग लिख लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आ गया मेरे को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना भी नहीं है, बट फिर अब देखो दूसरे वाली है P1 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आ जाएगा लैम्डा। P2 के साथ देखोगे तो -2 + 5 + 4 + 20 लैम्डा -20 = 0। तो 5 9 7 आ गया, ये 7 - 20 -13 हो गया, तो 13 = लैम्डा 13/20 आ गया। ये तो अलग अलग लैम्डा आ रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। दिस कैन बी द लाइन, क्योंकि अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, CD वाले के लाइन के करस्पॉन्डिंग है ये, ठीक है। ऐसी लाइन हो सकती है। फिर इस वाली लाइन के लिए देखोगे आप
ऐसे इसमें पॉइंट लोगे 6 - 5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और यहाँ पे आप दोनों में लैम्डा की वैल्यू डालोगे, आपके दोनों अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देखो आपको समझ आ गया, बेसिक आइडियोलॉजी है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे तो आपको 2 लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएंगी, एंड देन यू कैन रियलाइज दैट वो 2 अलग अलग लैम्डा की वैल्यूज आ रही है, दैट शुड बी फाइन। तो ये भी ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन की तो मैं बात करता हूँ, तो देखो ये थोड़ा सा यूनिक हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखता हूँ तो -2 लैम्डा, 4 + 5 लैम्डा एंड 4, ऐसा कुछ है। तो अब इस बार मैं इसमें डालता हूँ, देखो ध्यान से सोचो इस बात को, कि P1 में जब इससे डालता हूँ तो आ जाएगा -20 लैम्डा प्लस 60 प्लस 5 लैम्डा इंटू 15, 75 लैम्डा प्लस 12z 48 माइनस 60 इज इक्वल टू 60 वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ से 55 लैम्डा और इज इक्वल टू -48 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू -48/55 है। जब आप दूसरे प्लेन में इस इक्वेशन को डालते हो, व्हेन यू पुट दिस इक्वेशन इन द अदर प्लेन, देन यू गेट समथिंग लाइक -4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा आ जाएगा, प्लस 5 टाइम्स 4 + 5 लैम्डा, एंड दैट विल बी 20 + 25 लैम्डा, 20 + 25 लैम्डा, और 4 जब हम देखेंगे प्लस 16 -20, जब 4 मल्टीप्लाई करूंगा z की जगह तो 4 डालूंगा इज इक्वल टू 0, 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 29 लैम्डा जो है तो -16 के बराबर आ गया, लैम्डा की वैल्यू -16/29 आ गई। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने कोई गलती करी है क्या इसमें? वो देख लेते हैं। -2 लैम्डा, 4 + 5 लैम्डा, 4 लैम्डा है, तो सबसे गलती यहाँ लिख गलती कर, हाँ सॉरी, तो अब यहाँ पे डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, बिकॉज मतलब मेरे को पता है व्हाट आई ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई नो, तो बट आप लोग करेंगे तो ये तो बहुत सिली सी मिस्टेक है, या तो आई श्योर आप एग्जाम में कर रहे हो तो ध्यान रखोगे, ना हो भी जाएगी तो ठीक है, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, 4 + 5 लैम्डा माइनस प्लस 48 लैम्डा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो 0 आ जाएगी, क्योंकि देखो 60 वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ लैम्डा वाले टर्म ही। उसके बाद जब दूसरे वाली इक्वेशन में डालोगे तो -20 सॉरी +4 -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 4 + 5 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा -20 इज इक्वल टू 0। अगेन आप देखोगे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा सारे लैम्डा वाले टर्म में, यहाँ से भी लैम्डा 0 निकल के आ जाएगा। मतलब P1 और P2 दोनों प्लेन से इंटरसेक्शन तो होगा, बट वो सेम पॉइंट पे होगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू दोनों बार 0 आ रही है, और सेम पॉइंट पे हो जाएगा 0,4,0 पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब 0,4,0 पे जब इंटरसेक्शन होगा तो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम कि वो एक्चुअली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सीडी लाइन तो जो है वो यहाँ पे तो हो नहीं सकती, वो हैज टू बी, मतलब इस जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसको तो लाई नहीं कर सकती। तो इस प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या हुआ कि वो एक ही पॉइंट दोनों प्लेन्स पे इंटरसेक्ट हो गया, इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं है। सिमिलरली जब यहाँ पे इस केस में देखेंगे तो लैम्डा से बोर हो गए तो म्यू 4 - 2 म्यू और 3 म्यू, और फिर उसके बाद आप प्लेन 1 में जब डालोगे तो 10 म्यू प्लस 60 माइनस 2 म्यू सॉरी 30 म्यू प्लस 3 म्यू में 12 इंटू 3 म्यू माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारी। अब देखते हैं क्या आ रहा है, 10 - 30 ये आ रहा है, 10 म्यू माइनस 30 म्यू आ रहा है -20, 60 कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू 0 आ रही है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरे प्लेन की इक्वेशन में डालेंगे, देखेंगे भाई पॉइंट कहाँ आ रहा है, -2 म्यू प्लस 5 टाइम्स 4 - 2 म्यू प्लस 4 टाइम्स 3 म्यू -20 इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है। तो जब यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यार ये तो -2 म्यू प्लस 20 -10 म्यू प्लस 12 म्यू -20 इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये -12 म्यू हो गए, कैंसिल हो गए, ये 20 कैंसिल हो गए, 0 इक्वल टू 0 आ गया। सर ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू के लिए सेटिस्फाइड है, विच बेसिकली इम्प्लाइज कि ये वाली जो लाइन है दिस लाइज
इन P2, क्योंकि हर वैल्यू ऑफ म्यू के लिए जो भी लाइन पे कोई पॉइंट आ रहा है तो ये P2 प्लेन में लाई करेगा। अब यहाँ पे हमारे को एक पॉइंट ऑफ कंसर्न और भी है, P2 में लाई करने के बाद हमें एक चीज और चेक करनी थी, ऐसा तो नहीं है कि इस लाइन के पैरेलल हो गया जो LOI है। अब LOI के पैरेलल नहीं है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि LOI का जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज थे वो क्या थे? LOI, हाँ ये LOI के कुछ मिस हो गया, ये कुछ थी वो नहीं चलेगी, बट हाँ कोई बात नहीं। तो वही हमें दिखा था -4 और 5, 0 -4 5 थे, तो यहाँ पे जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो 1 -2 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ABD है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुमने ऐसे अटेम्प्ट भी ना किया हो, मतलब लॉजिकली तो ना किया हो, तुक्का मार लिया तो बात अलग है, बट ये आइडिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं है यार, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसे एग्जाम टाइम में सॉल्व कर पाए। लैम्डा की एक वैल्यू सॉल्व करने में तो हमें नानी याद आ जाती है, हम इतनी सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो या सो दैट इज ओके, लेट्स मूव ऑन। मतलब कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर्स टू सॉल्व। अगले पे आते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन से देख के डरना नहीं है, नहीं हुआ पेपर में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो नहीं सॉल्व होंगे। लेट S be the reflection of a point Q in respect to a plane। प्लेन में रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं ये, और प्लेन की इक्वेशन ही कुछ दे रखी है इन लोगों ने, where T P are real parameters, I J K this तो पता ही है हमें, Q and S के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, और इन्होंने अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू एसेंशियली हमसे पूछना चाहते हैं। भाई किसी भी प्लेन में अगर वो देखना है आपको, व्हाट यू कॉल प्रोजेक्शन देखना है, तो सॉरी इमेज देखनी है, तो आपको पता है x माइनस अल्फा, x माइनस यहाँ पे जैसे 10 है अपॉन जो भी प्लेन की इक्वेशन आएगी उसका a, y माइनस 15 बाई b, z माइनस 20 बाई c इज इक्वल टू -2 टाइम्स, इसको प्लेन की इक्वेशन में डाल देते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारे पास रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट हमारे को पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और रिजल्ट हमें नहीं पता है, इट विल नीड सम अमाउंट ऑफ। However, एक प्री स्टेप है इसका। पहली बात, आपको इस प्लेन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू डी व्हाटएवर, राइट, प्लस डी इज इक्वल टू सी, ऐसे कुछ इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कन्वर्ट कैसे होगा? अब यहाँ ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको टी और पी जैसी रियल पैरामीटर बोल रहे हैं, तो आपको समझ आना चाहिए टी को साथ में जोड़ लो, हमने कई बार करी है ऐसी चीजें। और टी की हर वैल्यू के लिए प्लेन पे पॉइंट है ना, ठीक है, तो टी को अलग से लिख लेते हैं, टी आई कैप माइनस आई कैप और प्लस जे कैप वाला टर्म मिल रहा है, और तो कोई टर्म नहीं आ रहा, प्लस पी वाला, पी भी एक पैरामीटर है, उसमें हमें आई कैप मिल रहा है और के कैप मिल रहा है, सॉरी माइनस आई कैप प्लस के कैप मिल रहा है, प्लस के कैप, ऐसा कुछ हमारा आर। तो एसेंशियली अगर आप देखोगे तो आर हमें क्या बोला हुआ है, अगर आप सोचोगे तो आर हमें बोला हुआ है टी टाइम्स अ वेक्टर ए प्लस पी टाइम्स अ वेक्टर बी, ये आर माइनस के वेक्टर है, के कैप एक वेक्टर, विच अगेन ये बेसिकली ए क्रॉस, तो अगर आप देखते हैं तो नॉर्मल, अगर आप देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी आपका नॉर्मल हो जाएगा, और बस फिर आप सीधे सीधे आर माइनस के कैप वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, या फिर आर डॉट एन इज इक्वल टू के कैप डॉट एन कर सकते हो। बस अब आपको एसेंशियली एन वेक्टर निकालना है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हो, माइनस आई कैप प्लस के जे कैप क्रॉस्ड विद माइनस आई कैप प्लस के कैप। अब इसे जब क्रॉस करोगे तो क्या होगा, माइनस आई कैप के साथ क्रॉस करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस आई कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप और माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस के कैप, ये आपका रिजल्ट है। माइनस आई के क्या हो जाएगा, अगर हम सोचें तो आई से जे से के ना, तो के से आई होता तो प्लस जे होता, तो माइनस माइनस जे प्लस जे कैप आ जाएगा, जे से आई ये माइनस के कैप आ जाएगा विच विल बी प्लस के कैप, और जे से के प्लस आई कैप आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल वेक्टर आ गया। तो यहाँ से आर डॉट एन जब आप देखोगे तो एक्स, अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डालते तो ए एक्स ए 1 into x plus 1 into y plus 1 into z is equal to k dot n which will be k cap dot n 1। तो ये आपका प्लेन की इक्वेशन आ गई, यहाँ डालो ए बी सी की वैल्यू आपको पता चल गई 1 1 1, और इस सी की वैल्यू भी आपको पता चल गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 हो गया। और जब आप प्लेन की इसमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालते हो यहाँ पे तो क्या आएगा 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 1 विच विल बी 25 20 45 -1 44, ऐसे कुछ आ गया हमारे पास।
इन्होंने पूछा क्या है, अब देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व एक्चुअली में। अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 88/3, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 88/3, और गामा की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 88/3। पूरा सॉल्व भी कर सकते हो आप, चलो देख लेते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है मुझे, तो अल्फा प्लस बीटा 3 टाइम्स अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा में 25 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 88 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 88/3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये थोड़ा सा कन्वीनियंस हो रही है। तो 75 माइनस 2 इंटू 88 176 हो जाएगा, माइनस 101 आंसर आ जाएगा, विच इट मैचेस। ठीक है, दैट इज फाइन। उसके बाद बीटा प्लस गामा की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो बीटा प्लस गामा में बीटा ये गामा यहाँ पे है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो बीटा प्लस गामा भी अगर आप देखोगे तो 35 माइनस 2 इंटू 88/3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 105 माइनस 176 वही कुछ हो जाएगा, माइनस 71 आ गया, विच इज राइट। गामा प्लस अल्फा की बात करते हैं, तो गामा प्लस अल्फा इज 30 माइनस 2 इंटू 88/3 और 3 से मल्टीप्लाई करना है 90, ये ऐसे कुछ आ गया, 90 माइनस 176 माइनस 86, ये भी ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करनी है अगर हम लोगों को, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा कितना 10 प्लस 25 प्लस 45 माइनस 88 ऑलरेडी, एंड दिस को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 माइनस 88 कितना हो गया, आई थिंक माइनस 43 आ गया, और अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 131 आ गया, विच इज नॉट माइनस 121, माइनस 129 आया, तो भी गलती है। सो ABC हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गए। तो दिस इज हाउ वी हैंडल दिस क्वेश्चन। सो ये बेसिकली एक रिजल्ट था हमारा इमेज ऑफ अ पॉइंट के लिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं पता, नहीं याद, वैसे तो हमने बहुत क्वेश्चन इस पर डिस्कस करे हैं, स्ट्रेट लाइन में भी करे हैं और 3D ज्योमेट्री में भी करे हैं, बट अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं, ये रिजल्ट याद नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इन दैट केस यू कैन एक्चुअली ट्राई फाइंडिंग आउट दी प्रॉब्लम्स, और कुछ ऐसे क्वेश्चन मतलब आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, कि आप लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, जैसे नॉर्मल आपको पता चल गया था ना, तो B विल बी पैरेलल टू द नॉर्मल। जो अगर आप एक लाइन देखते हो, तो अगर ये इमेज है और ये पॉइंट है S, ये Q पॉइंट था और ये S पॉइंट है, तो इस लाइन के आपको नॉर्मल वाला जो वेक्टर है, आपको उसके लिए इसके पोजीशन वेक्टर्स पता चल जाएंगे, तो यहाँ से इसकी इक्वेशन पता चल जाएगी, और अगर इसकी इक्वेशन पता चल जाएगी तो आप इस पॉइंट को अज्यूम कर सकते हो फॉर सम लैम्डा, और फिर ये जो मिड पॉइंट इसका निकलेगा इन दोनों पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला से, वो इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, तो वहां से आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो यही बेसिकली मेथड था, इसको प्रूव करने में भी जो यूज होता है इस रिजल्ट को, बट दिस इज द मेथड दैट कैन बी अप्लाइड अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन विच आई बिलीव इज एन ईजी क्वेश्चन। देखो अगेन ईजी तो नहीं बोलूंगा, मीडियम तो एटलीस्ट बोलना ही चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ये प्लेन वाली इक्वेशन निकालना भी एक बात है जो हमें अलग से सोचनी है। वही होता है, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर इस खाली प्लेन की इक्वेशन देता और बोलता है कि उसके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन देख लो, तो आप कर लेते, और अगर उसको प्लेन की इक्वेशन दे देता और बोलता है इस पॉइंट की इमेज निकालो, तो भी कर लेते, पर दोनों को मिला दिया तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बन गया लार्जली। तो दो आसान कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बहुत बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो गया, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। द आइडिया इज कि वो दो आसान कॉन्सेप्ट्स को लगाने की कैपेबिलिटी रखनी है पेपर के अंदर, सो दैट इज द आइडिया। आई थिंक दैट इज ग्रेट। तो होपफुली आप लोगों ने इसका आंसर सही निकाल लिया होगा। कंसिडर द पैराबोला y square equal to 4x, let s be the focus of the parabola। फाइनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ कोनिक सेक्शन वाला क्वेश्चन आया। पैराबोला में दिख रहा है a pair of tangents are drawn from point -2,1 पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कर लेते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। एंड देन अब हम आगे चलते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, P1 P2 पॉइंट पे मीट करते हैं पैराबोला को, P1 P2 पॉइंट पे, ठीक है। Q1 Q2 भी 2 पॉइंट्स ऑन लाइन SP1, S इज द फोकस, SP1 और SP2 लाइन है, तो Q1 Q2 पॉइंट यहाँ पे कुछ है, और ये दे रखा है Q1 Q2 पॉइंट ऐसे हैं कि ये जो है परपेंडिकुलर है यहाँ पे लाइन से, ठीक है, कोई बात नहीं।
और PQ1 is perpendicular to SP1 and PQ2 is perpendicular to SP2. ठीक है, ये बात गिवन। Which of the following two, SQ1, Q1, Q2, PQ1 डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं एसेंशियली। P1, P2 का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, Q1, Q2 का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो मोस्टली आपको पता चल जाएगा। P का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो Q1 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए, इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए, शुड बी एबल टू फाइंड इट। S पॉइंट का मुझे पता है 1,0, y² = 4x, पैराबोला 1,0, a1 है वहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अज्यूम करा जाएगा, तो t², 2t इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अज्यूम किया जाएगा। इनफैक्ट टेंजेंट ही आपको पता है, पेयर ऑफ टेंजेंट आपको पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, ty = x + at², दिस पासेस थ्रू -2, 1, तो -2 + at² और a1 है इज इक्वल टू, और y कोऑर्डिनेट 1 था, ये t हो गया, -2 + t², so yes, t² - t -2 = 0, तो यहाँ पे t के दो रूट आ गए, 2, 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, नहीं सॉरी 2, -1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 4, या फिर इस P2 वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 डालने पे 1, -2, ठीक है। P1 P2 को कोऑर्डिनेट पता चल गया मुझे। इनफैक्ट PS लाइन की, P1S लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। P1S लाइन की इक्वेशन y - 0 इज इक्वल टू, स्लोप हो जाएगा 4 - 4/3, 4 - 0, 4 - 1 ऐसे डिवाइड कर लोगे, x - 1, ये स्लोप की इक्वेशन आ गई हमारे पास, लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो P1S लाइन की इक्वेशन आ गई, 3y = 4 टाइम्स x - 1, ऐसे हमारे पास इक्वेशन आ गई। Q1 पॉइंट अगर चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपको P1S पे। अगेन आइदर यू कैन जस्ट अज्यूम अ पॉइंट यहाँ पे एंड इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट आप 0 कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगेन और इसकी स्लोप को इसकी स्लोप से इक्वेट कर सकते हो। मतलब अगेन ये वाली बात देखो है, एक करा जा सकता है बेसिक तरीके से, या फिर हमें फिर से अगेन वी कैन यूज द सेम रिजल्ट, 3y - 4x + 4 = 0। अगर आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहते हो -2, 1 से, तो आप सिंपली क्या करते हो, x - -2 इज इक्वल टू y - 1 अपॉन x में -4 है, y में 3 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर -2, 1 पॉइंट डाल देते हैं, 3 + 8 + 4 कब सॉरी -1 of this divided by a² + b², 25, which is okay। so यहाँ से अब x का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो वो हो गया -2, this value is 3 + 8 + 4 is 15 - 3/5, and there से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 12/5, and that is 2/5। सिमिलरली हम y का कोऑर्डिनेट देखते हैं तो 1 - 9/5 which is -4/5, और ठीक है, तो 2/5 और -4/5 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 2/5, -4/5 जो भी आ रहा है, ठीक है। और अगेन Q2 के लिए P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। P2S लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, P2 कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया था। P2S लाइन की इक्वेशन निकालते समय y - +2 इज इक्वल टू, स्लोप जो जाएगी वो जाएगी 0 - -2 अपॉन 0 x - 1, which again implies x = 1 आपकी लाइन की इक्वेशन है P2S। x 1 है और इस पे परपेंडिकुलर डालना है, -x = 1, तो ऐसे कुछ लाइन हो गई, इसमें -2, 1 से परपेंडिकुलर डालना है, तो y भी 1 हो जाएगा, तो y 1 आ जाएगा। तो जो आपका दूसरा पॉइंट है Q2 वो आ जाएगा 1, 1। तो अब SQ1 की बात कर रहे हैं। SQ1 देखो, Q1 Q2 कौन सा, ऐसा बहुत ज्यादा क्लियरली क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया था, बट लेट्स सी। SQ1 इज दिस डिस्टेंस, Q1 हमने कहाँ निकाला था, Q1 पॉइंट हमारा ये था, बस इसका डिस्टेंस इससे निकालेंगे, 3/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर, 1। SQ1 जो है वो 1 है, वो ये तो मोस्टली लग रहा है ठीक ही होने वाला है। SQ2 अगर हम देखते हैं दूसरे वाले पॉइंट के लिए, 1, 1, 1, 0, फिर वो भी 1 ही है, तो ठीक है, इसमें गलत हो गया। Q1 Q2 की बात करते हैं तो 1, 1 से देखेंगे तो 3/5 का स्क्वायर +4 और ये 9/5 का स्क्वायर का रूट, विच विल बी √90/5, that is 3√10/5, and then again you can see कि this would be a correct answer है। Similarly हम PQ1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। PQ1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट P का डिस्टेंस देखना है Q1 से, तो 2/5 माइनस
कितना हो गया 12/5 का स्क्वायर प्लस 9/5 का स्क्वायर का रूट विच इज 15/5 एंड दैट इज 3। ये भी ठीक हो गया। PQ2 निकालता मैं तो PQ2 में Q2 मेरा आया था 1,1, 3 का स्क्वायर 3 का रूट 3 आ जाता। यस, दिस इज फाइन। BCD हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स हो गए थे। ठीक है, थोड़ा गॉच है, अंडरस्टैंड दैट, बट अगर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो यू एसेंशियली एक पॉइंट हमारा ये था P1 P2 निकालना, दूसरा पॉइंट था कि इक्वेशंस निकालना, तीसरा पॉइंट था इमेज निकालना, नहीं फुट निकालना इक्वेशन निकालने के बाद, तो फिर तो उसके बाद जस्ट वैल्यूज डालनी है, जो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है उसके लिए वैल्यूज डालनी है। सो ये चीज़ थी। अगेन ये बहुत आसान बात है, ये बहुत आसान बात है, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना भी वो बहुत आसान बात है। ठीक है, तो फुली वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो दिस क्वेश्चन वाज डन। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मीडियम लेवल का तो है ही, देखो क्योंकि बहुत सारी चीजें अगेन हो रही हैं। However, again try to see individual steps। जो लोग को पेपर नहीं हुआ है उन लोगों को इसमें रिक्वेस्ट होगी कि इंडिविजुअल स्टेप्स देखने की कोशिश करो, हर स्टेप में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो, तभी आपको ओवरऑल क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आएगा। वरना आप क्वेश्चंस में कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कहाँ स्टार्ट किया था और कहाँ खत्म किया। कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट सा दिख रहा है गंदा सा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, हमें बोला हुआ है लेट मॉड डिनोट द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स M। बकवास बकवास। G एक फंक्शन है, ऐसे कुछ हमें दे रखा है, एफ थीटा में दे रखा है, तो G जो है वो इसमें एफ थीटा यूज हो रहा है, एफ थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। उसके बाद बोला है Px भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are maximum minimum value of G of theta। तो G of theta निकालना पड़ेगा। G of theta में sin थीटा cos थीटा के टर्म्स आएंगे, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। P of 2 की वैल्यू दे रखी है, इनमें से कौन कौन सी चीजें ट्रू होंगी। तो अच्छी बात। तो एफ थीटा फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, ताकि हम यहाँ डाल सकें, तो ताकि जी थीटा फंक्शन आए। एफ थीटा निकालेंगे पहले स्टेप में, फिर जी थीटा निकालेंगे, फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वाड्रेटिक निकालेंगे, और फिर उस क्वाड्रेटिक में वैल्यू डाल के देखेंगे वो पॉजिटिव आ रही है वैल्यूज या नेगेटिव आ रही है। कोई बात नहीं, ग्रेट। तो अब देखो एफ थीटा निकलेगा तो कैसे निकलेगा। पहली बात, एफ थीटा निकालते समय व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट समथिंग लाइक, इसमें देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, हाफ 1 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 1 टाइम्स माइनस साइन माइनस और साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1 प्लस, ये 2 टाइम्स ही हो गया, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये वाला टर्म। ये टर्म अभी सॉल्व किया मैंने, दूसरा वाला टर्म अभी सॉल्व करना बाकी है। दूसरे वाले टर्म को सॉल्व करते समय एक इंटरेस्टिंग बात है जो एग्जामिनर जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहा है, ये सब जीरो है। ठीक है, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सब जीरो क्या बकवास है। और ये log 4 पाई/4 और log 4/पाई भी दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों इसको k मान लो एक सेकंड के लिए, तो ये माइनस k हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कैसे सॉल्व करोगे। जीरो में तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई/4, ये वाला जो टर्म है इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैंने, यहाँ पे इस वाले टर्म को सॉल्व किया। ठीक है, माइनस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस 4 इंटू में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो देखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, कॉस इंटू के, कॉट थीटा प्लस पाई/4 इंटू के, बहुत अच्छी बात है, प्लस tan ऑफ थीटा माइनस पाई/4। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो मल्टीप्लाई होगा माइनस के इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस पाई/4। बहुत अच्छी बात है, वो भी आ रहा है, कोई इससे कुछ बहुत बड़ा इशू तो नहीं। अब इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बनती है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ सिंप्लीफाई होना है। अब है कॉस थीटा प्लस पाई/4 और साइन थीटा माइनस पाई/4। तो अगर आप नोटिस करते हो, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई/4 इज सेम एज कॉस ऑफ पाई/4 पाई/2 माइनस
theta minus pi by 4, which again if you can see it will become cos of pi by 4 minus theta. यही है ना, sin theta minus pi by 4 ही है और cos theta plus pi by 4 ही। ये तो ऐड हो जाएगा 3 pi by 4 ऐसे, which can be written as, ये तो कुछ सा है, अच्छा cos pi 3 pi by 4, so pi by 2 ऐड कर लो इसमें, फिर कुछ करो तो cos, एक ध्यान से cos थीटा माइनस पाई बाई 4 है, इसको ना पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करके ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ मैं, इसको ऐसा कुछ लिखता हूँ साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख लेता हूँ माइनस में, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस दिस विच विल बिकम पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो ये वाला जो टर्म है माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये जो tan थीटा माइनस पाई बाई 4 वाला टर्म है, इसको माइनस ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, एंड वहां से इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा। इफेक्टिवली ये टर्म यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर ये टर्म माइनस हुआ डबल हो गया, एक सेकंड कुछ गलती करिए, पेपर में करेंगे तो कैसे, ध्यान से ना, मैंने कुछ बहुत सारे टर्म्स यहाँ लिखे, इसको मैं बता देता हूँ। ये वाला जो टर्म था वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, राइट, प्लस में ये वाला जो टर्म था वो आया था माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 में दिस माइनस दिस, यहाँ माइनस था, क्योंकि ये तो फीलिंग आ रही है कि टर्म बचेगा तो बड़ा ही गंदा सा टर्म रह जाएगा, तो एक्चुअली में यहाँ पे फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, और ओवरऑल यहाँ पे माइनस ऑफ कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 आ रहा था, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, इवेंचुअली ये वाला टर्म 0 को वैल्यू हो जाता है। तो बड़ा ही मतलब पेनफुल सा प्रोसेस है, मतलब जस्ट ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, वैसे मैथ्स का चैप्टर सब्जेक्ट है तो कैलकुलेशन तो होंगी, बट this is the process where we have to find f of theta and that comes out to be 1 plus sin square theta। और यहाँ पे ये आते ही ये लगता है कि g थीटा तो बहुत ही सही दे रखा है, क्योंकि g थीटा में f थीटा माइनस 1 की बातें हैं, जो अगर आप देखोगे विल बी मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस f ऑफ पाई बाई 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 1 थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट है, विच विल बी साइन मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा। ये आपका जी ऑफ थीटा है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती करी कि उन्होंने इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लिया, मॉड नहीं लिया। ये एक फंक्शन है, इसके अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो ये ध्यान देना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 तक होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे पता है कि रूट 2 है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। कुछ लोगों को फीलिंग आ जाती है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, कि साइन थीटा 1 होगा, कॉस थीटा 0 होगा, ऐसे कुछ, बट अगेन द आइडिया इज द बेटर वे ऑफ राइट दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा का मॉड, और वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि व्हेन यू राइट समथिंग लाइक दिस, तो आपको पता है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा का जो मॉड है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस, इसको स्क्वायर करके रूट लेना है लार्जली, ये वाली कहानी, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो फिर वहां से आपको पता चल जाएगा ये जो मिनिमम वैल्यू जी थीटा की है वो बन जाएगी। तो आपका जो पी ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2, दिस वुड बी यस, ऐसा कुछ आपका पी ऑफ एक्स एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगेन इन्होंने बोला, एक और चीज बोली थी कि पी ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस रूट 2 आ रही है। हाँ सही बात है, तो यही है। तो वैसे तो लग रहा था क्यों दे रखा है, बट एक्चुअली में इसलिए दे रखा था कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी कर सकते थे, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2 भी लेते, उस क्वाड्रेटिक का भी सेम ही रूट होता है, बट दैट्स ओके, वो बस वो क्लैरिफाई करने के लिए था। मोस्टली तो लोगों ने यही लिया, तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। ये जरूर लगा कि क्यों दे रखा था, बट दैट्स फाइन। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में है कि वैल्यूज पूछी गई अलग अलग क्वाड्रेटिक, अलग अलग एक्स की वैल्यू पे, कि वैल्यू क्या आ रही है। नाउ ऑब्वियसली यू कैन नॉट पुट दैट वैल्यू, डालने में ही दुख हो रहा है, देखने में।
आप एसेंशियली ये कंपेयर कर लो कि भाई साहब ये जो ग्राफ आने वाला है ना वो कुछ ऐसे ग्राफ आने वाला है, इसका ओपनिंग अपवर्ड कर्व है और एक √1 है, एक √2 है। तो अब इसमें बस अब ये वैल्यू आपको देखनी है कि ये वैल्यू कहाँ लाई करती है, रूट के बीच में लाई करती है तो वैल्यू लेस देन 0 होगी, रूट से अबे लाई करती है तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो अब बस कंपेयर करना है 3 + √2/4, एक ये वैल्यू है, सब में डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 √2/4 लिख लो और इसे 4/4 लिख लो। तो अब आपको देखना है कि 4 और 4√2 और 3 + √2 में कौन बड़ा। 3 + √2 ऑब्वियसली ये 4/4 से बड़ा है, तो ये हमें समझ आती है। और 4√2/4 से अगर कंपेयर करता हूँ मैं सपोजिटली से, तो अगर मैं देखता हूँ तो 3√2 + √2 लिख सकता हूँ इस टर्म को, और √2 कैंसिल हो गया, 3√2 3 से बड़ा है तो ये वैल्यू पक्का से 4√2/4 से छोटी। आप वैल्यूज भी डाल सकते हो दिमाग में, अगर आप देखोगे तो 3 + √2 इज व्हाट 4.41 ऐसे कुछ है, और 4√2 में क्या है 4 × 1.41, तो ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा है, ऐसे कुछ फील कर सकते हो। तो वहां से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो ये इसके बीच में है, और यहाँ पे बीच में जब भी वैल्यू होगी तो इस फंक्शन में डालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। 1 + 3√2/4 अगर हम देखते हैं तो 1 + 3√2/4 को 4√2/4 और 4/4 से कंपेयर करना। अब 3√2 इज 3 × 1.41, ये इससे तो बड़ा है, पक्की बात है, क्योंकि 3√2 तो 3 से बड़ा ही है, तो ऑब्वियसली 4 से तो बड़ा ही हो गया 1 + 3√2। अब 4√2 की बात करोगे तो √2 को कंपेयर करना होगा, 4√2 को आप लिखो तो 1 √2 + 3√2 लिख सकते हो। मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, बट मैं फिर उसमें ज़्यादा मेहनत लग रही थी तो इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। एंड देन √2 ऑब्वियसली √1 से बड़ा है तो ये टर्म बड़ा है, तो ये बीच में पक्का से फिर लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 देखे तो एक पार्ट गलत हो। सी पार्ट में देखते हैं 5√2 - 1, 5√2 - 1 डिवाइडेड बाई 4 और 4√2/4। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो अगेन इसमें 4, इस वाले टर्म को आप लिख सकते हो 4√2 + √2 - 1/4, which obviously is greater than 4√2/4, which means ये पॉइंट के यहाँ पे है, और यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 दे रखी है, 5 - √2/4 की बात की जाए, 5 - √2/4 की बात की जाए तो अगर आप देखोगे तो ये तो 4 से भी छोटा हो गया, ये तो 4√2/4 से छोटा ही होगा, ये तो इनफैक्ट 4 से भी छोटा हो जाए। तो अगर आप देखोगे 4 से छोटा होने पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर लेस देन 0 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और सी आ गया। दिस इज हाउ यू वर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अगेन डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ये गंदा सा डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे एक बार वो कुछ जो टर्म्स आप देखोगे तो वो टर्म्स ऐसे रियलाइज हो गए आपको कि cot of थीटा + π/4 और tan of थीटा - π/4 अगर आपको साथ में दिखाई देता है तो मे बी यू कैन गेट दिस फीलिंग यार कि ये तो π/2 माइनस करने पे शायद सिमिलर सा टर्म बन जाएगा, ऐसी कुछ फीलिंग हो सकती है। कॉट को tan में ले जाओगे आप, नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो सिमिलरली कॉस को साइन में ले जाओगे आप, और वहां पे ले जाने की कोशिश करोगे तो नेचुरली वो टर्म्स बनेंगे जो यहाँ टर्म्स दे रखे हैं, एंड यू विल सी वो कैंसिल होके ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ दिस वाज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वर नॉट एबल टू थिंक अबाउट दिस। अदरवाइज उसके बाद ये मॉड वाली चीज में एक छोटा सा एक स्टेप है जो एक कंफ्यूजिंग सी बात है कि वो मॉड की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वहां पे थोड़ा सा गलती करी बच्चों ने। और उसके बाद बस यहाँ पे वैल्यूज डाल के नहीं देखना, आपको कंपेयर करना है पोजीशन ऑफ रूट से कि ओवरऑल जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो वो हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो इसके आंसर हमारा ए और सी पार्ट हमारा इसका आंसर हो गया। तो लार्जली अगर आप देखते हो तो जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे, तो जो पहला क्वेश्चन था वो इजीली सॉल्वेबल था इस सेक्शन में, दूसरा क्वेश्चन मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड था, तीसरा क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशंस बहुत सारी थी, टाइम बहुत लगता, सॉल्वेबल था बट वो तीसरा क्वेश्चन जो था वो अगेन मुश्किल था, वो तो सॉल्व करना मुश्किल ही लग रहा है। चौथा क्वेश्चन जो था वो सॉल्वेबल था मेरे हिसाब से, और पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। छठा क्वेश्चन मतलब वो ये 0 रियलाइज हो जाता तो फिर शायद उसके बाद तो मैं कहता कि सॉल्वेबल है, बट ये 0 रियलाइज होने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई, मेरे बच्चों से बात हो रही थी तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आई थिंक दैट इज परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे हम लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि 3 क्वेश्चंस तो हम यहाँ पे सॉल्व कर ही सकते थे, 2 भी हो जाते तो भी ठीक है, मतलब दैट इज ओके। ठीक है आलोक भैया, आप टेक दिस फॉरवर्ड, अभी कुछ 3-4 क्वेश्चन बचे हैं अभी भी।
All right, so let's start with the last section. एक इसमें जो मैं बोल रहा था ये हम जल्दी में रह गया था in this question number 10 when we were applying sigma in the last part तो हमने sigma of 1 तो अप्लाई नहीं करा था यहाँ पे 1 लिख दिया था बस simply 3 so there should be sigma of 1 to the power n where n goes from 0 to n तो ये 30 वाली जो वैल्यू थी 27 यूनिट्स बची हुई थी बेसिकली so this will be 3 into 30 नॉट 87 यूनिट्स बची हुई थी so into 30 होगा बेसिकली ना ये तुमने 3 ऐड किया था दिस शुड बी 90 यहाँ पे 90 ऐड होगा तो आई थिंक still we'll get the other answer which is not correct with respect to the options. So this is 5 and then this is what 11 and then this is 6 and then 5 and then this is so this will be 3 5 6 1 5 right. तो ये मतलब बहुत ही मतलब चिंदी बना है एग्जामिनर का कि मतलब जबरदस्ती वैल्यू दी which is 3 5 6 1 0 इतना सॉल्व भी करवाया and still the answer is not what should be given here. तो वो आंसर कुछ और ही है. Answer is 3 5 1 6 6 1 5 and matlab it's not a good way of giving a question. Right, now let's move on to the last section 3 which has 4 multiple choice matching things and matching sets and which has only one correct. I think इसमें सिर्फ एक correct था, only one of the 4 options satisfies and it was +3 -1. Right, so let's move on to match the following. दिखने में भयानक होते हैं पर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओगे तो ये हो जाते हैं. Right, complete solution would take time but in general the question is easy with respect to the options which are given. Right, तो पहले मैच द फॉलोइंग बहुत मुश्किल आते थे आज से 10 साल पहले 11 साल पहले. अब तो ये मतलब लार्जली आसान होते हैं बाय द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. अभी ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है तो ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन अगर आए तो ये मतलब होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है. दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ये मतलब बिल्कुल क्लियर सी बात है. तो एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन आएगा अगर सो यू नीड टू लुक विद अ पॉजिटिव आउटलुक. तो खैर एग्जाम हो गया तो ऐसे सॉल्यूशंस देख रहे हैं. This is for people who might be viewing this video probably 1 year down the line. ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है तो होना ही है. पहला कर लेते हैं, पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज यू हैव cos x प्लस sin x. तो ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चंस पे क्वेश्चन है सिंपल सा है ना. अब देख लेते हैं ऑप्शन देख लिया अगर मेरे हिसाब से तो इसमें ना ऑप्शन पहले देखना बहुत जरूरी है. 1 का आंसर या तो p है या 1 का q है दिख रहा है यहाँ पर. तो 1 का p है या 1 का q है. तो 2 या 3 एलिमेंट बता रखे हैं कि x की बात कर रहे हैं तो x में कितने एलिमेंट्स हैं. x का डोमेन ये रहा बट इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं वो निकालने हैं. तो cos x प्लस sin x है स्टैंडर्ड कहानी है. वी ट्राई एंड मल्टीप्लाई बाय 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x. You can convert this into sin a plus b formula or cos a minus b formula. I'm more comfortable with cos, so I'm writing this as cos of x minus 1/√2. Oh sorry, pi by 4. That is equal to 1. 1/√2 हो जाएगा यहाँ पे भी तो 1/√2 आ जाएगा. Right. So that's how I'm solving this. तो यहाँ straight forward आ जाएगा कि x minus pi by 4 and which is this value is equal to what? Cos of pi by 4. That is equal to plus minus pi by 4 आ गया. This implies the value of x is equal to, in fact plus minus pi by 4 को लिखें हम इसको लिखेंगे 2n pi plus minus pi by 4. That's the general solution. So x value is equal to 2n pi plus minus pi by 4 minus pi plus pi by 4 है ना. तो इसको फर्दर अगर थोड़ा सोच लें यहीं पे करें तो इट इज 2n पाई. इधर अगर ये प्लस होगा तो प्लस पाई बाय 2 होगा आंसर या ये 2n पाई. दिस इज 2n पाई. दिस इज minus pi by 4. So my electricity has gone away, so just you need to wait a bit. Shows you probably you can start with question number 18 because I think the UPS is not working. So we can put that in the list. You can pause the live session probably. Shailendra, are you there Shailendra? आप लाइव सेशन को पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए.
पॉज्ड है शैलेंद्र? हाँ भैया, रिकॉर्डिंग होती है, लाइव सेशन पॉज नहीं होता। लाइव सेशन पॉज नहीं होता है? नहीं। तो फिर लाइव सेशन में वो जब रिकॉर्डिंग आएगी तो कैसे होगा? मतलब वो कम कम आएगी? क्लाउड वाली पॉज करती है। लाइव सेशन वाली यू कांट पॉज? हम्म, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, alright, so it is fine. So we will start. तो ये कर रहे थे हम इस क्वेश्चन को, राइट? सो वी हैड x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये चल रही कहानी है ना जी। तो ये दो दो वैल्यूज हैं, हम चेक कर लेते हैं, n और x की बात कर लेते हैं कि n की वैल्यूज और x की वैल्यूज है ना। तो n की वैल्यू अगर 0 है तो दिस वैल्यू कैन ईदर बी व्हाट, पाई बाय 2, 0 और पाई बाय 2, ये दो दो सॉल्यूशंस पॉसिबल आ गए। n की वैल्यू अगर 1 है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, और इट विल बी 2 पाई। बोथ आर आउटसाइड द रेंज। रेंज देखो तो क्या, -2 पाई बाय 3 टू पाई बाय 3, तो रेंज की बात करो तो ये अलाउड रेंज है। दिस वैल्यू इज -2 पाई बाय 3, दिस इज +2 पाई बाय 3, राइट? तो पाई 2 पाई भी अलाउड नहीं है, क्लॉकवाइज जाओगे। एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई अलाउड नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई प्लस पाई बाय 2 अलाउड नहीं है। -1 देख लो एक बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीइंग इट। सो इट इज -2 पाई प्लस पाई बाय 2, which is -3 पाई बाय 2। तो -2 माइनस पाई तो अलाउड नहीं है, तो -3 पाई बाय 2 कैसे अलाउड होगा? -3 पाई बाय 2 इज लाइक गोइंग टिल हेयर, है ना, या -2 पाई, ये तो अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट? तो ये मतलब ये सब कहानी बेकार है। तो देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स अलाउड। तो 1 का आंसर जो है वो P हो गया। P हैज 2 एलिमेंट्स, तो 1 का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड P हो गया, विच मीन्स दीज आर गॉन, राइट? 50% तो यही खत्म होगी कहानी। अब 2 का आंसर देख लेते हैं। 2 का एस या पी देख बता रखे, देख लेते हैं 2 का क्या है। तो √3 tan 3x की बात कर लेते हैं। So let's talk about √3 tan 3x. So we can talk about √3 tan 3x is equal to 1, है ना जी। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। So that implies tan 3x is equal to 1 by √3, right? Which is equal to tan pi by 6. 50 degrees हो गया। What does that imply? That implies that 3x is equal to, we say it is n pi plus pi by 6. That is general solution. We try and write, है ना जी। तो ये this implies the value of x is equal to what, n pi by 3 plus pi by 18, right? Something like this, n pi by 3 plus pi by 18, है ना। थोड़ा और लिखे तो it is nothing but 6n, है ना, 3 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, +1 by 18 और इंटू पाई बाई 18। ये कहानी है। दोबारा शुरू हो जाते हैं। x, n और x की वैल्यूज, कि n अगर 0 है, this value is pi by 18. Is it lying within the range? The range allowed was what? -5 pi by 18 to -2 to 5 pi by 18. So range allowed is x belongs to -5 pi by 18 to 5 pi by 18. चेक कर लेते हैं। तो पाई बाय 18 तो ऑब्वियसली 5 पाई बाय 18 से कम ही है। दिस इज अलाउड। n इक्वल टू -1 की बात करो, n इक्वल टू -1 की बात करो तो क्या आएगा? ये हो जाएगा -5 -6 +1 -5, इट इज -5 पाई बाय 18, राइट? -5 पाई बाय 18, तो -5 पाई बाय 18 अलाउड है। इज द एंड पॉइंट अलाउड? इज द एंड पॉइंट अलाउड? यू हैव टू चेक वेदर द एंड पॉइंट इज अलाउड। तो आई थिंक द एंड पॉइंट इज अलाउड इसमें, यस, स्क्वायर ब्रैकेट्स। आगे चलते हैं। फिर +1 भी शायद आ ही रहा होगा, देख लेते हैं जी। +1 अगर है तो ये क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 18। ओह, ये तो नॉट अलाउड। 5 पाई बाय 18 तक की लिमिट है ना, है ना। तो अब अगर अगर माइनस पे जाओगे तो और नेगेटिव की तरफ ही जाओगे, ये तो बॉर्डर लाइन पे आ गया। तो आई थिंक और कुछ होगा नहीं, करके देख लो। -2 में क्या आ जाएगा, -12 -11 पाई बाय 18, इवन लेसर देन दिस वैल्यू, विच इज नॉट अलाउड, राइट? तो चेक कर लेना, 2 पे तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होगा। तो ये यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स आ गए, यानी इसका भी आंसर, 2 का आंसर भी क्या आ गया, इट हैज 2 एलिमेंट्स, 2 का आंसर भी P आ गया। So we're done. This is wrong. This is correct. Right? I know. Just for the satisfaction, you can try and check the third part.
थर्ड का आंसर टी आना चाहिए, 6 एलिमेंट हो जिंदगी में कोई काम नहीं, 6 एलिमेंट चेक करेंगे, कर लेते हैं। चलो कॉस की बात है, कॉस इतना मुश्किल नहीं होता करना, एकदम सोचने में साइन में दिक्कत होती है, कॉस में कर लेते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द एग्जाम। अगर तुमने ऐसा करा है, इसको ढंग से कर लिया तो विच इज डन, एक बार कर लेते हैं कॉस को, 2 cos 2x इज √3। सो थर्ड पार्ट, तो ये आसान ही होते हैं मतलब, है ना जी। सो क्वेश्चन इज 2 cos 2x is √3, so it is cos 2x is equal to √3/2। ये कहानी चल रही है ना। सो cos 2x is √3/2, √3/2 का मतलब क्या हो गया, ये अगेन 30 डिग्रीज हो गया ना, cos π/6, राइट। सो दैट दिस implies, you know, 2x is equal to 2n pi plus minus π/6, that's the answer, है ना। x की बात कर लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा जी, x is equal to n pi plus minus π/12, राइट। you know, रेंज क्या है, the allowed range arranged allowed values of x is -6 π/5। तो पाई से थोड़ा बड़ा है, थोड़ी रियलिस्टिक वैल्यूज फील करोगे तो ना बेटर होता है कि पाई से ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो ये -π to पाई है, पर थोड़ा सा -π से और कम है, और ये पाई से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है, दिस वैल्यू इज अ बिट मोर देन पाई, राइट। सो दैट्स व्हाट इज गिवन हियर, है ना जी। तब शुरू हो जाते हैं, n की वैल्यू कि x और n, टेक्निकली आंसर में पता क्या आना चाहिए, थर्ड का आंसर टी आना चाहिए, इट शुड हैव 6 एलिमेंट्स। तो 0 + 1 - 1 शुड वैल्यू 0 + -1 शुड बी द आंसर टेक्निकली, इसे सोच रहा हूँ। n = 0 पे आंसर क्या आ रहा है, +-12 + π/12, which obviously will lie between this range, -π to π में लाई करेगा ही, ये रेंज जो है ये क्या है, this is a value which is lesser than -π and this value is a higher value than π। तो फॉर श्योर -π to π तो इसके बीच में लाई करता ही है कि -6 π/5 is lesser than -π, right, which is greater than x, which is lesser than π, which is further lesser than 6 π/5। That's what you need to feel. These are the values of x, right? हाँ, तो ये चल रही कहानी। तो ये तो ऑब्वियसली मतलब -π से बड़ा ही वैल्यू और π/12 जो +π से छोटी वैल्यू है, तो 0 तो 2 वैल्यूज आ गई। अब एक बार 1 पे चेक कर लो, x = 1, सो n = 1, तो n = 1 करोगे तो पाई ± π/12, वो भी ठीक बात है कि पाई के अराउंड चल रहा है, कि पाई इस वाले पाई से -π/12 और +π/12, तो -π/12 तो पक्के से नेगेटिव इस तरफ जाएंगे 0 की तरफ, तो ये अलाउड होगा ही। पाई + π/12 तुम चेक कर लो खुद से, ये 6 π/5 से कम होगा। this value is nothing but pi plus π/5, so π/5 is a higher value than π/12, तो π/5 is at a right part compared to π/12, तो पक्के से ये भी अलाउड वैल्यूज है। आगे चलते हैं, -1 पे चेक कर लो, -1 पे बात करोगे तो इट इज अगेन -π के अराउंड चल रहा है, तो जो पाई के अराउंड चल रहा है सिमेट्रिक कहानी है, वो -π के अराउंड भी सेम कहानी चलेगी, दैट इज अलाउड। जस्ट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन वी कैन ट्राई टू चेक फॉर 2 करेंगे तो 2π + -π/12 है, तो ये बढ़ गई वैल्यू। तो अभी पाई तक था, 6 π/5 इज जस्ट मोर देन पाई, राइट, बट 2π तो कुछ बहुत ज्यादा हायर वैल्यू है, उसके अराउंड ये वैल्यूज अलाउड नहीं होगी, चेक कर लेना, -2 पे भी अलाउड नहीं होगी। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, 6 पॉसिबल सॉल्यूशंस, दैट्स व्हाट इज राइट। सो 6 पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो इसका आंसर आ गया 6 पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये भी ठीक बात लग रही है। फोर्थ का यू कैन चेक, इट्स योर होमवर्क, यू कैन कन्वर्ट टू साइन और यू कैन कन्वर्ट टू कॉस। इसका आंसर आएगा 4 पॉसिबल एलिमेंट्स। तो ये मैच द फॉलोइंग इज एन इजी थिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, राइट। मतलब वैसे क्वेश्चन मुश्किल होता है, चारों अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, तो ये मुश्किल क्वेश्चन था। अगेन आई वुड डेफिनेटली रेट दिस एज अ मीडियम क्वेश्चन, यू कांट स्किप दिस क्वेश्चन, इट्स अ मीडियम क्वेश्चन, है ना। मतलब ये इजी मीडियम टाइप ही है क्वेश्चन एक्चुअली में, तो विद रिस्पेक्ट टू द मतलब क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट मीडियम बोल रहा हूँ, बट आई एक्चुअली वांट टू कॉल इट एज एन इजी मीडियम क्वेश्चन, राइट, दैट्स व्हाट इट इज। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया जी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है ना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 होती है, स्टैंडर्ड कहानी है ना। एंड दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। देख लेते हैं। 2 players P1 and P2 play a game against each other, है ना। तो दोनों वेले लोग हैं, आपस में खेल रहे हैं। In every round of a game, so game isn't happening in rounds, each player rolls a fair die once, तो एक प्लेयर जो डाई फेंक रहा है, where 6 faces of a die are there, have 6 distinct numbers, स्टैंडर्ड सी कहानी 1 2 3 4 5 6 होंगे नंबर्स,
let x and y denote, what we say, readings on the die rolled by P1 and P2. X और y जो है वो die के top face की reading आ रही एक तरह से, right? And these are the readings of by P1 P2 respectively. If x is greater than y, then P1 scores 5 points. तो अगर x का स्कोर x की रीडिंग ज्यादा ही तो उसके 5 नंबर आ गए और P2 के पास 0 स्कोर आ गए. अगर दोनों का डाई का स्कोर जो है बराबर आया, इसका मतलब दे स्कोर 2 पॉइंट्स, डाई की वैल्यू बराबर आई. और y की वैल्यू ज्यादा आई, यानी P2 का जो डाई है उसका टॉप फेस ज्यादा आया, देन P1 के 0 पॉइंट और P2 के 5 पॉइंट्स. तो खत्म हो गई बात. जिसका बड़ा नंबर आया उसके 5 नंबर है. अगर दोनों के बराबर नंबर आए तो both get 2 points. That is what is the game, right? Let xi yi be the total score of P1 P2, right? Respectively after playing the ith round. तो ith round के बाद टोटल स्कोर xi yi है, ये बता दिया. फर्स्ट राउंड के बाद x1 होगा, सेकंड राउंड के बाद टोटल स्कोर x2 होगा एंड सो ऑन, राइट? है ना जी. अब आगे पढ़ते हैं. क्या बोला हुआ है? प्रोबेबिलिटी दैट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी सेकंड राउंड तक x का स्कोर या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, जी y2 की. वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना. सिमिलरली आगे चल रहे हैं. प्रोबेबिलिटी की जी सेकंड राउंड तक स्कोर जो है वो बड़ा होगा, या थर्ड राउंड तक स्कोर बराबर होगा, थर्ड राउंड तक स्कोर बड़ा होगा. तो दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. एग्जाम में लॉजिक सोचना बड़ा मुश्किल है. मतलब प्रॉब्ली बहुत काम हो, बहुत तुमने प्रैक्टिस करी है कुछ तो शायद मतलब करो, बट ना मतलब इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, राइट? कि दो सोचे कैसे, हाउ डू वी स्टार्ट ना. स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तंग करता है हमें, राइट? है ना जी. तो मतलब हाउ वी कैन प्रॉब्ली थिंक अबाउट दिस कि क्या कहानी है. सोचे अगर इत्मीनान से. टॉप फेस ऑफ डाई देखना है हमने. एक बार एक्स ने फेंका, फिर एक बार वाई ने फेंका वही डाई, राइट? सो दे आर थ्रोइंग अ डाई एंड once x P1 throws then P2 throws, right? अब क्या हो सकता है सोचे इत्मीनान से. इसके पास there are 6 outcomes here and there are 6 outcomes here. The possible distinct outcomes are 36, right? x की outcomes and y की outcomes, है ना. अब यहां पे इत्मीनान से अगर सोचें तो अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट राउंड, है ना. सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट राउंड, तो x का स्कोर y के स्कोर के बराबर हो, राइट? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सिर्फ 6 ही तो आउटकम्स हैं, राइट? और कैसे कैसे बराबर होगा फर्स्ट राउंड के एंड में, कि जितना स्कोर इसका आया उतना ही स्कोर इसका आया, राइट? तो देयर आर ओनली 6 आउटकम्स. व्हाट आर दोस आउटकम्स? इधर दोनों के 1 आए स्कोर्स, या दोनों के 2 आए, या दोनों के 3 आए, या दोनों के 4 आए, दोनों के 5 आए. वैसे इट इज नॉट मेंशन कि वो 1 2 3 5 6 नंबर्स ही हैं, बट इट इज मेंशन दैट द नंबर्स मेंशनड आर डिस्टिंक्ट. सो एनीवेज मतलब वो 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, पर वो डिस्टिंक्ट नंबर सब सेम है. जो नंबर इसका है वो इसका आया. ये तो 6 आउटकम्स हैं. Out of the possible 36 outcomes, there are only 6 outcomes in which there will be a draw, right? This is the probability of a draw, ना. Rest all outcomes में बाकी बची कितनी आउटकम्स है? 30 आउटकम्स. 36 में से 6 चली गई तो 30 आउटकम्स है, जिसमें या तो x जीतेगा या y जीतेगा. तो बहुत सिंपल सी बात है कि 6 आउटकम्स में होगा ड्रॉ, और बची हुई जो 30 आउटकम्स हैं उसमें 15 आउटकम्स में x का स्कोर ज्यादा होगा, और तो x जो है वो विन करेगा और y ऑब्वियसली लूज करेगा. और बाकी 15 आउटकम्स में x का स्कोर कम होगा, ये लूज करेगा, और जो y है वो विन करेगा, राइट? दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, है ना. तो ये स्टैंडर्ड सी कहानी है. दिस स्ट्रक्चर्ड थॉट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना. तो अब यहां पर जी x कब जीतेगा, कि सेकेंड राउंड के एंड में कैसे जीतेगा, कुछ ऐसे सोचने का थॉट आता कहीं पर, है ना. तो अब ये थॉट अगर आ रहा है तो फंस जाओगे, है ना. या इस थॉट के बाद अगर ये शायद आ जाए कि या तो x जीतेगा, ये प्रोबेबिलिटी होगी, क्या तो x जीतेगा, या प्रोबेबिलिटी होगी कि y जीतेगा, or the probability will be that the y will win, score of y will be more, x2 will be less than y2, राइट? या तीसरा ये क्या हो सकता है कि दोनों का स्कोर क्या हो जाए बराबर, और इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है, और ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है. तो द टोटल प्रोबेबिलिटी हैज टू बी 1.
इट इज म्यूचुअली, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। या तो एक्स जीतेगा या जी वाई जीतेगा या ड्रॉ होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स जीतेगा तो वाई जीत गया, या एक्स जीतेगा तो ड्रॉ हो गया, एक्स जीतेगा तो एक्स जीतेगा। इट्स एन एक्सक्लूसिव केस, एक्सक्लूसिव टू द अदर टू केसेस, राइट। तो ये थॉट आना बहुत जरूरी था। फिर जी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है पी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी पी है, ये समझना बहुत जरूरी था कि इट्स अ फेयर गेम, जितनी प्रोबेबिलिटी एक्स जीतने की, जितनी प्रोबेबिलिटी वाई की जीतने की। तो शायद कुछ कुछ समझ आता कि दिस वैल्यू इज 2p प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू y इन द सेकेंड राउंड इज 1, है ना। तो मतलब यू माइट हैव डन सच क्वेश्चंस प्रोबब्ली यू नो व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस, जहां पे ये वैल्यू सेम रहती है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पक्के से करा होगा प्रैक्टिस करिए तो यहाँ पे एक्चुअली थॉट प्रोसेस ये था कि जी x2 इक्वल टू y2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू हैव x2 इक्वल टू y2। तो स्कोर ऑफ x एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड कैसे हो सकता है। अब व्हाट आर द पॉसिबल केसेस कि x जो है पहली बार में जीत गया, x की बात करो विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरी बार में हार गया। तो फर्स्ट राउंड में जीत गया, सेकंड राउंड में हार गया, तो पहली राउंड में स्कोर होगा इसका 5, सेकंड राउंड में इसका स्कोर होगा 0, और जो P2 है उसका स्कोर 5 हो जाएगा। तब ड्रॉ हो गया, स्कोर बराबर हो गया ओवरऑल, है ना। या पहली बार में जीत गया, दूसरी बार में हार गया, ये पॉसिबिलिटी है। पहली बार में हार गया, सॉरी, दूसरी बार में जीत गया, ये पॉसिबिलिटी है, तब स्कोर बराबर होगा। ये दोनों बार दोनों राउंड्स में ड्रॉ था। These are the only possibilities when the scores of both P1 and P2 will be equal, right? So this thought is what is required. और अब इसकी बात कर लो, तो probability of पहली बार जीता और फिर हारा, पहली बार हारा और फिर सेकेंड राउंड में जीत गया, या दोनों बार क्या हो गया, ड्रॉ। दिस आई एम थिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू x and automatically it is with respect to y। तो अगर जीतेगा तो जीतने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, पहले राउंड जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, 15 केस है, 36 में से 6 केस ड्रॉ के थे, 15 जीतने के थे, 15 हारने के थे, 15 केस हैं जीतने के आउट ऑफ 36, है ना। और 15 केस है किसके, अगली बार हारने के आउट ऑफ 36। दिस इज द वे इन विच यू कैन हैव अ स्कोर सच दैट स्कोर ऑफ P1 इज इक्वल टू P2। यहां पर P1 को 5 पॉइंट मिल गए और यहाँ P2 को 5 पॉइंट मिल गए, प्लस सेम 15 केस हैं हारने के और 15 केस हैं जीतने के, दैट्स व्हाट इज। और ड्रॉ के कितने केस हैं, 6/36, और दूसरी बार में ड्रॉ हो गए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, this is the probability of x2 is equal to y2. So this structured thought is difficult with respect to exam. So I feel it's a difficult question, right? So this is what 2 into 15 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 स्क्वायर, राइट, है ना जी। तो ये 15 का स्क्वायर तो कट रहा है मेरे ख्याल से 3 से ना, तो ये 15 स्क्वायर बाय 36 स्क्वायर प्लस व्हाट, ये 1/6 हो गया ना, तो 1/6 स्क्वायर, तो 3 पंजे 15 एंड 3 इंटू 12 हो गया ना, 5/12, दैट्स हाउ इट इज, है ना जी। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, सो दिस इज 2 into 25 by 12 into 12 प्लस 1/36, राइट। सो ये 2 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, 3 पंजे 15, 3 into 12, 2 into 6 करो ना, 2 से लिख दिया, 2 into 6, right, so it is 2 into 6, yeah, right, so this is how it is. So 48 हो गया ना ये, तो ये 12 into 6 and this is 12 into 3, right, so I need to multiply this by 12 6 is 72, so into 2 into 2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 27 by 72, right, that's how it is. So this becomes 9 3s are, and then this is 9 8s are, so this value comes out to be 3/8. तो x2 का स्कोर y2 के बराबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है। अब अगेन एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड, सिमिलरली एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड, क्या कहानी है, सीमित तो कहानी है कि या तो x का स्कोर y से ज्यादा होगा या y का स्कोर x से ज्यादा होगा, या दोनों का स्कोर बराबर होगा, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज एक दूसरे से they are mutually exclusive. This has to be an understanding. And again, if this value is h, this value is also h, or we can say a, so this value is also a. और ये वाली वैल्यू निकाल ली, क्या है, 3/8,
खत्म। तो probability that x2 is greater than y2 that is equal to a, एंड यहां से क्या आ रहा था 2a plus 3/8 is equal to 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 of 1 minus 3/8, right? So this is 5/2 of 5/8, तो 5/16 हो गया, right? तो that's how it is. तो एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड ये जीते x जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड x का ड्रॉ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8 है। दैट्स हाउ इट इज। अब क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x जो है वो जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी, x जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/16 आई थी, x जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 5/16, अभी निकालो। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 5/16, सो दिस वैल्यू इज फॉर श्योर इज 5/16 है ना। 2 का r दे रखा है, लो है ना, खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहानी। 2 का r तो पहले ही दे रखा है, क्या करोगे, कोई बात नहीं 2 के r का, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं कि जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x जीतेगा या x का ड्रॉ, x जीतेगा कह रहा हूं, P1 जीतेगा या उसका इसका उसका ड्रॉ होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है कि x या तो x का P1 का स्कोर ज्यादा होगा या P1 का स्कोर P2 के बराबर होगा। तो P1 का स्कोर एट द एंड ऑफ सेकंड राउंड इज x2 एंड P2 का स्कोर एट द सेकंड राउंड is y2, right? So this is for the terminologies. So xi and yi are the scores of P1 P2 respectively at the end of the ith round. ये कहानी है अंदर mutually exclusive. This value we already have figured out, it is 5/16, and this value we just figured out, I think it was 3/8. So this value is 3/8. तो कितना है 2 into 2 करोगे तो 6 5 11 11/16 होगा, right? So this probability is 11/16 by default. 1 का cube. So these two are gone. So we are left with these two. 1 का cube. अब x3 और y3 की बात हो रही है अगेन। अगर अब इतना समझ के आ गए तो फिर आगे आ गया, तो x3 equal to y3 वाला काम कर सकते हैं। थर्ड राउंड we can talk about at the end of third round. At the end of third round बिल्कुल सेम कहानी है। It is exactly same things, right? की probability of x3 equal to y3 क्या है, ये क्या है कि या तो P1 P2 P1 की बात करते हैं, we let think with respect to P1, या तो P1 पहले जीते फिर हारे और फिर ड्रॉ हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो दैट डेफिनेटली इंप्लाइज x3 इक्वल टू y3, या पहले हारे फिर जीते और फिर ड्रॉ हो जाए तो भी ये वैलिड होगा, या ड्रॉ हो जाए फिर हारे फिर जीते तो भी होगा। तो समझ आ रही बात, ये केसेस जो है 3 फैक्टोरियल केसेस है, 6 केस है बेसिकली, राइट। इन सब केसेस में पक्के से दोनों का स्कोर बराबर होगा कि एक बार P1 को 5 पॉइंट, एक बार 0, एक बार 2 पॉइंट, एक बार 0 पॉइंट, फिर एक बार 5 पॉइंट, एक बार 2 पॉइंट, ऐसी सेम फॉर P2। दैट्स व्हाट, सो वी जस्ट नीड टू टॉक अबाउट दीस केसेस। तो जी जीतने कितने केस हैं जी 15, जीतने की प्रोबेबिलिटी है 15/36, जी हारने की प्रोबेबिलिटी 15/36, ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 6/36, एंड ऑल दीज केसेस विल बी रिपीटेड 6 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल टाइम्स। दिस इज द वैल्यू, राइट, द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस, राइट। तो ये इस केस की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी, फिर तीसरे केस की प्रोबेबिलिटी करते करते 6 केस होंगे ऐसे, राइट। सो टोटल 6 केसेस और 3 फैक्टोरियल केसेस, दे आर ऑल डिफरेंट केसेस। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, तो ये वी आर डन, अगेन वी आर डन, राइट, है ना जी। ये कहानी है। अगर इसमें एक केस मिस हो गया है एंड तीनों बार ड्रॉ हुआ, ये भी तो पॉसिबल है, तीनों बार ड्रॉ भी तो पॉसिबल है। वो क्या होगा 6/36 into 6/36 into 6/36, this we missed, that's how a draw can happen। तो ये चाहिए था बस हमें, right, this is what was required, right। तो we can do, or what you've done is, what you're saying is the 6 times of probability of, right, ये छोड़ो, मतलब सिंपली ये 6 times of probability, ये करा हमने इसके 6 बार 6 वाले एक केस प्लस एक ही केस, right। so what do we get, so this 3 factorial is again 6, तो एक कट जाएगा, right, 36, so it is, this is 1/6, and so it is 15,
3 5s are 3 12s are 3 5s are 3 12s are. So we'll just take 1 by 12 square outside. This 5 square. राइट वैसे तो यहाँ से कट गया 6 6 36 6 6 36 6 6 36 और 12 वापस लेना है तो 2 और 2 कर लो ना और यहाँ पे 3 रख दो कितना बच जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 by 3 दिस इज व्हाट विल बी लेफ्ट विद यहाँ पे 2 आ गया ऊपर मिस्टेक ना हो जाए right so 6 2s are 12 I took out and 6 2s are 12 and this value is 2 by 3 25 right so this value becomes 25 into 3 is what 75 77 right so this is 77 right and 12 square 12 2s are 24 2 ऊपर 12 1s are 12 144 हो गया ना ये right so this is 77 and by 144 into 3 भी तो होगा नीचे का 3 भी तो है so this is equal to what 3 4s are 12 1 ऊपर 3 4s are 12 13 एक ऊपर 3 1s are 3 4 32 this is the probability मतलब एक बार थॉट आ गया तो फिर मतलब तो फिर तो मोमेंटम है जी दिमाग का और ये अब इट इज प्रीटी क्लियर कि probability of x3 greater than y3 right it is plus probability of x3 less than y3 plus probability of x3 equal to y3 this value obviously equal to 1 so this implies probability of x3 greater than y3 equal to probability of x3 less than y3 this value is we can straightforward say half of 1 minus probability of x3 equal to y3 और की पास जैसे हमने पिछली केस में कर रहा था इसको मान लिया कुछ वैल्यू कुछ भी ले ली एक वैल्यू यू कैन टेक दिस वैल्यू एज कुछ भी l so this value is also l so यहाँ से क्या आया 2l plus let's say this value is equal to 1 so l is equal to half of 1 minus e that's what you have done so 1 minus कितना हो गया 77 by 432 देखो सोल्यूशन आसान है एक बार लॉजिक समझ आ गया तो मतलब कोई भी हीरो बनता है 10 तरह की महारती आ जाएंगे मैथ्स के जी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो ऐसे हो जाना था ये तो ऐसे हो जाएगा राइट तो एग्जाम के अंदर तो बैठे होते हैं ना हमें फिजिक्स भी करनी है मैथ्स भी करनी है केमिस्ट्री भी करनी है राइट पहुंच जाएंगे लोग महारती मैथ्स के जी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना खुद 10 घंटे लगाए हो बाहर नहीं जी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है तो चप्पल मारने कौन करेगा बेसिकली 8 से 64 राइट सो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन the concept is difficult right to apply it in exam is difficult मतलब if you were not able to do this question it is perfectly fine है ना so you saved some time x3 किसकी प्रोबेबिलिटी है x3 इक्वल टू y3 की प्रोबेबिलिटी आई है कितनी नहीं ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी है 355 वाली इक्वल वाली 77 है तो इक्वल वाली 77 है और ग्रेटर वाली है 355 और आई थिंक इक्वल वाली से काम चल जाएगा थर्ड का आंसर क्या है अच्छा दोनों में टी है ओहो ये भी बेकार हो गया मजाक हो गया जिंदगी में फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है एस सो दिस इज योर आंसर राइट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना तो सॉल्यूशन इज इजी वंस यू अंडरस्टैंड बट टू स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट इज डिफिकल्ट कैसे करोगे है ना जी आगे चलते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट लास्ट क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा व्हिच हैज कम अप फ्रॉम द अलजेब्रा पार्ट तो ये दिख ही रहा है यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन है ये लगेगा वही कोई 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना लेट पी क्यू आर बी नॉन जीरो रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली अच्छा जी नॉन जीरो है जी पी क्यू आर that the numbers that are respectively 10th 100th and 1000th term of a harmonic progression बस जी ये डराने की काम है राइट ऐसा लिखा हुआ डरावनी भयानक भाषा में इसका मतलब पक्के से क्वेश्चन आसान ही है राइट सो दे आर 10th 100th and 1000th term of a harmonic progression PQR are in harmonic progression which implies 1 by P we talk about the solution so given क्या है जी given क्या है कि 1 by P 1 by Q and 1 by R are in AP that's what is given right so that's what you have to apply ये अप्लाई कर दिया तो गया डन ये अप्लाई नहीं करा तो मतलब परेशानी है बस that's how it is ये दिया हुआ है
if they are in harmonic progression, so any reciprocals are in AP, right? So 10th, 100th, and 1000 terms, right? Of a harmonic progression. So they are in a harmonic progression, and they are that this is the 10th term, this is the 100th term, this is the 1000th term. Consider a system of equations. And the पहले तो PQR को लिखो कि P is the 10th term. This is like T10. This is T100, and this is T1000. So I think we can write this. Ki T10 is 1 by P, which is equal to what? Some first term plus 90. T100, which is 1 by Q. This is the first term plus 90. And T1000 is A plus 90. Right? That is given to you. है ना? अब आगे चलते हैं. अब इक्वेशन क्या दे रखी है? एक दे रखी है x plus y plus z equal to 1. So one equation is x plus y plus z is equal to 1. The next equation is 10x plus 100y plus 1000 z is equal to 1 होगा. ये 0 है. बहुत बढ़िया बात होगी, 0 है ना. The last equation is qrx pry प्लस PQZ. तो ये सिमिलर सिचुएशन हमने एक क्वेश्चन में करी थी बिफोर द जेईई एडवांस्ड. वी डिड दिस इन सम क्वेश्चन कि ऐसी स्टेट सिचुएशन दी हो यहाँ PQQR है ना, RP टाइप कहानियां हैं. तो इट इज प्रीटी क्लियर, either you have to multiply or you have to divide by PQR. And can you divide and multiply? Yes, it has been given that PQR are non-zero real numbers. So you just divide with them. Right? So you divide. So what do you get? You get, this implies, we straightforward get x by P plus Q, y by Q. So we did a similar question. I distinctly remember हमने ऐसा कुछ करा था. So you need to revise that in case you want to just check. Right? और 1 by P कुछ ना कुछ यूज होगा. तो 1 by P क्या है जी? पता है हमें 1 by P की वैल्यू क्या है? A plus 90. So this equation is nothing but A plus 9D into X plus A plus 99D into Y plus what? A plus 999D into Z is equal to 0. This is what is going to you. अगर ढंग से सोचो तो, है ना. तो फिर इसको सॉल्व करना है. अब ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं तुम्हें, और अब क्या बता रखा है? if Q by R is 10, Q by R का रेशियो दे दिया, then system of linear equations has this has solution, this has solution. तो solutions की बात करनी है, तो you have to talk about finding solutions of this question. So this is a very doable question. You talk about determinant. इसके determinant की बात कर लो. तो D की बात कर लेते हैं. D क्या होगा जी? 1 1 1 10 100 1000, right? है ना. और क्या दे रखा है? A plus 90. I'll just try to expand this. 100 A plus 90 1000 A plus 999. Right, this is given to us. That's how it is, है ना. अब ये D अगर घूर के देखोगे तो 0 है. D ये चीज यहाँ होनी चाहिए. ये देखते समझ आ रहा है D 0 है जी. क्या बात कर रहे हो? This D 0 कैसे जी? मतलब खोल लो. 1 1 1 10 100 1000 and then A plus 1 1 1 10 100 1000 and then this is 90 90 999D. चेक कर लो. राइट, यहाँ पे 2 रोज सेम आ गई हैं, तो दिस टर्म इज 0. और यहाँ पर ये दो रोज जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल आ गई हैं. यहाँ से 90 कॉमन निकाल लो तो ये 1 आएगा. ये कहते हैं ये कितना आएगा? 9 कॉमन निकालोगे तो ये कितना आएगा? 11, है ना. और ये कितना आएगा? 999 पैरेलल हो गए, बिल्कुल सिमेट्रिकल टर्म्स आ गए हैं. just try and check them. Right, this will turn out to be 0. This term will also be 0. Right, या कर लो ऐसा ना, 100 minus 1 कर लो. ये टर्म जो है दोबारा नेक्स्ट करोगे तो ये टर्म क्या आएगा? 1 1 1 9 99 एंड 999. इसमें से D कॉमन निकाल लिया मैंने, तो हो गया 9 99 999. करा क्या है मैंने? I've done row 2 is nothing but it is row 2 minus row 1. That's the transformation which I did, and D मैंने कॉमन निकाल लिया. तो सेम टर्म्स आ गए.
दिस टर्म बाय डिफॉल्ट अगेन बिकम्स इक्वल टू 0। तो दिख जाना चाहिए एकदम कि ओहो जी ये तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब डी 0 आ गया। अब चेक करो D1। D1 देखो कितना कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1 और ये 0 और ये भी 0। तो D1 के लिए यहाँ के कोफिशिएंट्स की जगह पुट कर दोगे, 1 0 0 पुट कर दें, तो D1 क्या होगा जी, D1 इज इक्वल टू 1 0 0, and then this was already 1, this was 10, this was 100, no I think 1 था 10 था या ये 100 था, so this was 100 and this was 1000, this was A plus 99D and this was A plus 999D. That is what it was, right? So you can just try and solve this. So this value is equal to what, 100 times of A, you know, plus 99900D minus 1000 times of A, right, minus 99000D, this value, right? तो D1 की बात हो रही है, तो D1 क्या आ गया जी, ये D1 कैपिटल D1 क्या आ गया, A कॉमन ले लिया तो 990 है ना जी, और ये 99900 आ गया है। तो ये पहले सब्ट्रैक्ट कर लो ना, कितना बचा है, 900 हो गया ना, 99,000, तो 900D minus 900A, it's a symmetrical thing. So what we get is 900D minus A. That's the value of D1, right? तो ये बात कर लेते हैं, है ना। तो A अब P by R एक क्वेश्चन था, एक D2 निकाल लो, चलो D2 निकाल भी लो साथ साथ ना, D2 भी आसान ही होगा। वो क्या होगा, 110 A plus 90 100 1000 A plus 999D. It seems to be symmetrical, so I'm just putting out, so this minus 1 into कितना हो जाएगा, A plus 10A plus 999D minus 1000A minus 9000D, this value. So this comes out to be how much? ये हो गया 10A था ना, ये 10 लिख दिया मैंने, 10A. So this is minus 990, that is 990A, you know, and then this becomes 9000 माइनस कर दो, तो ये minus 990D हो गया, that is 990D minus A आ गया ये, right? Then we talk about D3. तो D minus A की कहानी है वो PQR में हो रहा होगा, 110 A plus 90 100 A plus 99D 100. So just try and solve this. So it is 1 into 10A plus 990D, and then this is 100A minus so this is what, 90D minus 90A, right? Energy. So this comes out to be what, 90D minus A. तो एक 90 है, एक 900 है और एक 990 है, ऐसी कुछ बना दी है बेसिकली। तो ये सारे के सारे D माइनस ए हैं बेसिकली, तो D माइनस ए डिपेंडेंट है, अगर D इक्वल टू A हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और D नॉट इक्वल टू A होगा तो नो सॉल्यूशन। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। चेक कर, लेट्स ट्राई एंड चेक, है ना जी, कि फर्स्ट इज Q by R is 10, फर्स्ट ऑप्शन, Q was, so Q by R अगर 10 है तो इसका लिख लेते हैं, दिस implies R by Q, or we can write this as R by Q equal to what, 1 by 10 है ना, या Q की वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू क्या है, 1 upon A plus 99D, that is better, and R की वैल्यू is 1 upon A plus 999D, that value is 10, right? So this means that
A plus 999D, it is equal to 10 times of A plus 99D. That is given to us. Right? ये कटकुट आ जाएंगे. This implies we get 900D. This is equal to what? 9A. तो गड़बड़ करिए मैंने. What was PQR? R was Q was 99. नाइन 90 है वो ना, पूरा मल्टीप्लाई करना बेटर होता है. A plus 999D, it is equal to 10A plus 990D. यहाँ से आएगा 9D, it is equal to 9A. This implies A equal to D. लो जी, अब A equal to D आ गया तो D1 भी 0, D2 भी 0 और D3 भी 0. This implies D1 equal to D2 equal to D3 is equal to 0 and D is 0. राइट तो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए. अब चेक कर लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए हैं. राइट तो ये क्या कहानी है. इफ ए इज इक्वल टू डी तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए हैं, है ना. और ए इक्वल टू डी हो गया है तो दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू, तो तीन इक्वेशंस थी ना हमारे पास. तीन इक्वेशंस थी, एक्स प्लस वाई प्लस जी. अगर देखो तो ए प्लस 9D की वैल्यू क्या हो गई जी. ए इज इक्वल टू डी, इट इज इक्वल टू 10D. एंड ए प्लस 99D की वैल्यू क्या हो गई, 100D. एंड ए प्लस 999D की वैल्यू क्या हो गई, 1000D. तो ये क्लियर है. दिस implies third equation becomes $10D plus 10DX plus what, 100DY plus 1000DZ, right, which is same as implies 10x, जो ये इक्वेशन दे रखी थी यहाँ पर, 10x 100y 1000z. This 10x 100y plus 1000z equal to 0, which is same as second equation. Right, that's how it is. In fact 10 कॉमन लेकर खत्म ही करते हैं, बेकार में 10 लगा रखा है. This is 1, this is 2 and then this is the third equation. Right, तो ये दोनों सेम आ गई हैं बेसिकली. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, है ना. देख लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या ऑप्शंस होंगे. 1 का t या 1 का q. 1 का t, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यस इट हैज. और q क्या है, 10/9 से सेटिस्फाई करेगा. देख लेते हैं. 10/9 minus 1/9 and 0. तो 10/9 minus 1/9 is 9/9, which is equal to 1. Yes, it is satisfying. इसको सेटिस्फाई करा देख लेते हैं. 10/9 100 हो गया और -1 करें -100 हो गया और 0. Yes, it is satisfying. नीचे वाला तो सेटिस्फाई करेगा ही. तो t भी हो सकता है, आंसर q हो सकता है. So P1 का आंसर कैन बी q also and 1 का आंसर कैन बी t also. चलो आगे चलते हैं फिर, है ना. फिर 2 पे चलते हैं. 2 में RS में लड़ाई चल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका आंसर R भी हो सकता है. ऑब्वियसली R इज नॉट गिवन बट आंसर कैन बी R also because it has infinite solutions. राइट, सो देख लेते हैं कि ये P by R is not 100. P by R is not 100 कर लेते हैं. राइट, सो केस 2. P क्या था जी. P was 1 upon A plus 90. 90 था, 99D था. So A plus 90. And R is 1 upon A plus 999D not equal to 100. Which implies A plus 999D by A plus 99D, that is not equal to 100. Which implies
A plus 999D is not equal to 100A plus 9900D. Right, so if we just try and solve this, what have I done? यहाँ पे दो नाम लगा दिए, एक ना था. So this is, ये तो ठीक है, 100A this equals 900. This implies 99D is not equal to 99A. That implies D is not equal to A. And if D is not equal to A, that implies D1 will not be equal to 0. That will not be equal to D2. And D3 will also not be equal to 0. That's how it is, right? And D is equal to 0. That straightforward implies no solution. Khatam. So we are done. No, this answer 2 का आंसर हो गया नो सोल्यूशन. सॉल्व कर रहे हैं 2 का आंसर इज नो सोल्यूशन, राइट. तो इसका आंसर क्या हो गया? S. So this is this, these two are gone for sure, है ना. अब 3 पे चलते हैं फिर. 3 पे S और P, S और P. तो P by Q नॉट इक्वल टू 10 है, ये देख लेते हैं. P by Q नॉट इक्वल टू 10. A plus 90 upon 1 upon A plus 99D is not equal to 10. That implies A plus 99D upon A plus 90. This is not equal to 10. That implies A plus 99D not equal to 10A plus 90D. That implies 9D is not equal to 9A. That implies A not equal to D. The same ही आ गया. T not equal to A, which implies no solution. Right? So if it implies no solution, what is this equal to? तो इसका आंसर भी नो सोल्यूशन हो. सॉरी, इसका आंसर नो सोल्यूशन है. 2 का आंसर नो सोल्यूशन था. हाँ, 2 तो लिखा था मैंने. 2 का आंसर इज नो सोल्यूशन एंड 3 का आंसर इज ऑल्सो नो सोल्यूशन. मतलब 3 का आंसर क्या चाहिए हमें? S. तो ये आंसर हो गया, गॉन. 3 का आंसर S हो गया, है ना. P by Q इक्वल टू 10 है तो D इक्वल टू D हो जाएगा. तो P by Q इक्वल टू 10 है अगर फोर्थ पार्ट. A equal to D, that implies infinite solution. Infinite solution आंसर क्या क्या है? इसका आंसर क्या दे रखा है? R. हाँ, R is an answer. तो Q is an answer for sure. इसका आंसर क्या है? Q. This is infinite solution. This also is infinite solution. This is no solution. This is no solution. Infinite solution आंसर क्या क्या आ रहा है ना. QTR तो आ ही रहा है, राइट, है ना जी. आंसर तो वैसे निकाल चुके हैं. और P रह गया. P कहीं डिस्कस नहीं हुआ. P देख लेते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है इनफाइनाइट सोल्यूशन में. 0, 10/9 -1/9 1. यस, इट इज सेटिस्फाइंग. इसको कर रहा है, ये दोनों तो सेम आ रही हैं D इक्वल टू A पे. तो ये 0, 1000/9 -1000/9. हाँ बिल्कुल, ये भी कर रहा है. तो P इज ऑल्सो आंसर. P इज ऑल्सो एन आंसर, राइट. बट जरूरत नहीं थी हमें, यहीं पे खत्म हो गया था. मैच द फॉलोइंग, right? So this I would say again, this is a medium question because of the length of the question. It's a doable question. I want to call it as an easy medium, but it's a medium question, right? So I just made a matrix when Shobhit was solving, है ना. तो ये मतलब अगर देखो तो यहाँ पर ये 17वां क्वेश्चन मैंने मीडियम में डाला है. 17th is a medium question, which is the matrix match question. 16th question is again, it's a difficult question. So 16th question I have put this in a very very difficult question. And 15th question is again, it's a medium question based on trigonometry. It's an easy medium question, but we have put this in medium. तो largely इसमें ये medium questions आ रहे हैं. 10th question की बात करें, this was again a EPGP HP question, simple question based on that consecutive terms, right? So but it's a medium difficult question because तुम्हें ये जो solve करना था बड़ा मुश्किल था. So 10th question, I put this in a difficult category, right? Medium difficult category. Then section 1 में discuss कराई था जहाँ पे एक question तो बिल्कुल ही आसान था. ये third question, which is based on sets, right? And then we talk about this question number.
sixth, which was a bit lengthy, but it was doable. This again is based on APG PHP. Again, it's a doable question. Rest ये जो बाकी 3 क्वेश्चन थे, ये 2 कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस आए थे, which were again medium difficult because they were complex. So you know the approach, so you can definitely solve one question out of these. And then this was inverse, because it is inverse, then I put this in as a medium difficult question, but because भयानक एक्सप्रेशन लग रहा है, वरना it is also doable question. है ना. 7th question again थोड़ा सा एक्स्ट्रा केसेस बनाने पड़े, तो I'm calling it as a medium difficult question. तो सोचोगे तो आउटराइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन तो अलजेब्रा में सिर्फ एक ही आया है, विच इज प्रोबेबिलिटी, है ना. वरना तो ये इसमें से तुम मतलब 5 क्वेश्चन है, ये 5-6 क्वेश्चन है, 5 ही है, 3 2 5, तो 5 में से 1 या 2 तो कर ही सकते हो. ये तो डुएबल क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट. 4 क्वेश्चन आर डुएबल. आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चन मतलब आई फील दैट यू शुड बी एबल टू डू, क्या कहते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, है ना. तो और एक क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा हो गया. Out of the 10 questions of algebra part which have come up, I think 4 are very much doable in exam, which you should have done. And out of these 5 questions, you probably had a higher probability of doing at least 2 questions. You know? So Shobhit will continue with the last question and then probably he'll give an analysis. Okay. So आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का. मैं सोच रहा हूँ हमने पेपर डिस्कशन करते करते हमने 3 घंटे हो गए, हमें 3 घंटे. बच्चे पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, मतलब बड़ा मुश्किल है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. एग्जाम में लेवल एक लेवल अप ही हो जाता है बाय डिफॉल्ट. हम तो रिलैक्स वे में सॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू इन एग्जाम. चलो खत्म करो आप. हाँ, तो बस एक एलिप्स की इक्वेशन दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, x²/4 + y²/3 = 1. एक पॉइंट है अल्फा कॉमा 0, अल्फा 0 से 2 के बीच में. तो एलिप्स का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वी गेट दिस. तो ये अल्फा जो है बीच में कहीं यहाँ पे लाई करता है, तो अल्फा कॉमा 0 ये पॉइंट है. A straight line drawn through H parallel to y-axis crosses the ellipse and its auxiliary circle at E and F. ये पॉइंट E है. और ऑक्सिलरी सर्कल अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो ये आपको पता होगा ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है. मेजर एक्सिस इज डायमीटर, ये F आ जाता है. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट E. इस पॉइंट पे जो एलिप्स पे टेंजेंट है वो कहीं G पे यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. Suppose the straight line joining the F and origin makes an angle phi with the positive x-axis. पहले बोल देते तो लाइफ आसान हो जाती, इतनी मेहनत करने की टेंशन नहीं होती. बट ये अगर phi एंगल है तो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग बात है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एंगल, द पैरामेट्रिक एंगल इन एलिप्स, राइट. क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है a cos a, यहाँ पे 2 है तो 2 cos थीटा 2 sin थीटा और phi. एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है x1 तो सेम है 2 cos phi कॉमा 2 sin phi की जगह √3 जो यहाँ पे b है, c का रूट sin phi. ऐसे कुछ हमारे पास है. तो दैट सीम्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. यस, तो कोई बात नहीं. एंड देन अब ये बोल रहे हैं कि phi की वैल्यू अलग अलग वैल्यूज पे ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल FGH की बात कर रहे हैं. अब FGH ट्राइंगल का एरिया ये F है, ये G है और ये H है पॉइंट. एरिया ऑफ ट्राइंगल FGH ही तो निकालना है हमें. अब वो क्या होगा भाई, बेस की लेंथ जो है वो GH है इनटू जो हाइट है वो FH है. ठीक है. तो अब देखो, अब यहाँ पे G का कोऑर्डिनेट कैसे सॉल्व करेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होती है, x1 + y1 ऐसे करके कर लेते हैं. या फिर पता ही है x cos phi अपॉन 2 + y sin phi अपॉन √3 = 1. यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगी हमें. दिमाग में अगर सोचोगे तो 2 cos phi और √3 cos sin phi डालना है x1 y1 में, x1 और y1. एंड देन जब हम ये कर लेंगे तो इवेंचुअली क्या इस जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा. बिल्कुल पता चल जाएगा. y को 0 डाल दो, x की वैल्यू कितनी जाएगी 2 secant phi 2 upon cos phi which is 2 secant phi. तो GH अगर ये अल्फा, देखो ये जो पॉइंट था अल्फा कॉमा 0 था, अब अल्फा के टर्म्स में लिखना भी जरूरी नहीं है. यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर, क्योंकि ये 2 cos phi 0
तो जो GH जो डिस्टेंस है वो G का कोऑर्डिनेट विच इज 2 sec phi minus 2 cos phi, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, 2 upon cos phi लिख लो, कोई बात नहीं। और FH जो ये हाइट है वो 2 sin phi है, ये आपका एरिया है। In terms of this angle phi, you are able to calculate the area. Question is over. 2 को कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 minus cos square phi which is sin square phi divided by cos phi into 2 times sin phi, और ये sin cube हो जाएगा। तो ये तो आप कैलकुलेशंस कर ही लोगे, इतनी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब बस phi की वैल्यू डालनी, phi की वैल्यू π/4 डालोगे। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन वैसे तो चूज कर सकते हो आप जनरली कौन सा किया जाए, फोर्थ को चेक करना ही नहीं चाहिए, सब में पी दे रखा है आंसर, फोर्थ का आंसर तो पी है ही पक्का से, कोई बात नहीं। अगर पहले का 5 π/4 डाल देते 2 sin क्यूब पाई हो जाएगा 1/√2 का क्यूब अपॉन cos phi 1/√2 हो जाएगा विच इज 2/2 1 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्यू हो गया। इसका आंसर क्यू होने पे पता चल गया ए और बी ऑप्शन हो नहीं सकते, सी और डी में से कोई होगा। ठीक है, सी और डी में से कोई होगा तो बस 2 चेक कर लो, 3 चेक कर लो, 4 तो नहीं, 2 या 3 में से कुछ भी चेक कर लो। 2 में देखते हैं, अगर 5 की वैल्यू π/3 डालते हैं तो बी ऑप्शन के लिए ये जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स पाई डालना है, π/3 डालना है, तो sin π/3 इज √3/2, तो 3√3 तो न्यूमरेटर में आ गया, नीचे 8 आ गया, cos π/3 इज 1/2, तो यहाँ 4 आ गया, ये 2 आ गया, 3√3/2 आ गया विच इज दिस, सी आ गया आंसर, ये भी ठीक हो गया। तो ये दोनों ठीक हो गए, तो ये सी ऑप्शन ठीक आ गया। थर्ड में 5 की वैल्यू को π/6 डालना है, तो कुछ कर ही नहीं रहना, मतलब इस वैल्यूज डाल के करना है। ऑब्वियसली ऐसा आना था, ऐसा कुछ आएगा, इस केस में ऐसा आएगा। और जब मैं 5 की वैल्यू को π/12 डालूंगा तो π/12 की मुझे वैल्यू शायद याद ना हो, बहुत सारे लोग इसे याद भी कर लेते हैं, 15 डिग्रीज वाली वैल्यू अगर याद है तो वहां से आप काम चला सकते हो, नहीं याद है तो फिर आप इन दैट सिनेरियो यू विल डू समथिंग लाइक कि आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 2 sin square phi into sin phi upon cos phi which is again essentially, अगर आप देखते हो तो अगर मैं sin phi से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे और ऊपर तो sin 2 phi, क्योंकि π/12 में π/6 वाली वैल्यू पता है ना, तो 4 sin raised to sin, ये ऊपर 4 sin pi raised to power 4 हो जाएगा विच इज, अगर हम देखते हैं तो 2 sin square phi का होल स्क्वायर अपॉन sin 2 phi। और अगेन ये हम देखेंगे तो फिर तो काफी कॉमन सी बात है हमारे लिए कि 2 sin square phi is 1 minus cos 2 phi का स्क्वायर अपॉन sin 2 phi। तो ये वैल्यूज डाल के वी शुड बी एबल टू गेट रिजल्ट लाइक दिस। शायद वो कहीं पे 2 minus √3 आता है, तो आपको पता है √3 - 1 का स्क्वायर बाई 2 होता है, वो डाल लोगे। और एनीवेज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस बात की रिक्वायरमेंट नहीं थी। दैट इज इट, दिस इज इट, वी आर एबल टू गेट टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम एनालिसिस करें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस से कितने क्वेश्चंस आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस से अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो देयर आर ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं। 10 में से जैसे अगर मैं देख रहा था स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन था, जो ये वाला क्वेश्चन था ये भी मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन था। तो ऐसा कर सकता हूँ मैं से कि एक क्वेश्चन को इजी कैटेगरी में डाल देता हूँ और एक क्वेश्चन को मीडियम वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 8 था, है ना। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेक्शन 2 में से एमसीक्यू वाले सेक्शंस में देख जाते हैं। एमसीक्यू वाले सेक्शंस में जो पहला क्वेश्चन था ये आसान कैटेगरी में था, तो इंटीग्रेशन है तो इजी मीडियम में डाल देंगे। तो ये जो 9th क्वेश्चन था उसको इजी मीडियम में डाल देते हैं। और जो 11th क्वेश्चन था ये तो वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में डालेंगे हम, ऑब्वियसली पेपर में करना पॉसिबल नहीं है ना, वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में डालते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन जो था ये मेरे लिए इजी टू मीडियम कैटेगरी है, और ये 13 क्वेश्चन भी इजी टू मीडियम कैटेगरी है। 12 और 13 यहाँ डाल दिया हम लोगों ने। और 14 क्वेश्चन जो था क्या था, ये भी अगेन
मीडियम में ही डालेंगे, इजी टू मीडियम में तो नहीं डालूंगा, वो जीरो नहीं निकल के आता ना वो प्रॉपर। 14 और 18th क्वेश्चन जो है वो तो मैं इजी में ही डालूंगा, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वैसे इजी टू मीडियम में डाल देते हैं, इजी तो बोलना मुश्किल लगता है एडवांस के पेपर में कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट, बट ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। लार्जली अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ओवरऑल जो हम सोच सकते हैं वो ये हम सोच सकते हैं कि भाई इजी एक क्वेश्चन हो गया, इजी टू मीडियम में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आ गए, और मीडियम में हमारे पास क्या कहते हैं 4 क्वेश्चन आ गए, और डिफिकल्ट में हमारे पास 4 5 क्वेश्चन आ गए, वेरी डिफिकल्ट में थोड़ा 2 क्वेश्चन आ गए। तो बेसिकली एम ये होता है कि भाई इन 6-7 क्वेश्चंस में से हम लोग 7 में से 6 कर लें, ये तो आसानी क्वेश्चन हैं, इन 4 में से 2 कर लें, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हमारे अगर इस पेपर में सॉल्व हो जाते हैं तो वी विल बी एबल टू डू फेयरली वेल इन दिस एग्जाम। आई होप आप लोग ये कर लोगे, क्योंकि मैथ्स का स्कोरिंग तो नॉर्मली कम ही जाता है, और इतना टाइम होता भी नहीं है कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बट ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया, जो बेस्ट हो सकता है हमें उसके करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना होता है पेपर को। तो देखते हैं कि हाउ थिंग्स टर्न आउट, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, एंड आई गेस दैट इज ओके, दैट इज इट फॉर टुडेज डिस्कशन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। अभी कुछ पेपर 2 वगैरह कुछ बचे हैं, वी विल डिस्कस दैट मे बी टुनाइट और अर्ली मॉर्निंग टुमारो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। ठीक है शैलेंद्र, इसको अनलाइव कर दो। ठीक है। हो गया, स्टॉप हो गया। शैलेंद्र